millennials. Welcome to the podcast. How you guys are doing today? Great. I'm very excited about this thing. You're excited about it? I'm equally excited because perfume is a topic which is very close to my heart. Like I take very extreme care on choosing the fragrance, right time of the day, right event. So I think I'm in the right company now to discuss more. But we'll also talk more about business side of things because you guys have started a new brand, Seroma. Let's start with the icebreaker and tell me about one of the most weird or let's say interesting comment that anyone might have given you when they first tried your perfume. So basically, I still have the video. So and from the very first exhibition. So basically, हमने जब online start किया था तो इतना अच्छा नहीं था because it's an experiential product and हमारी first exhibition एक fraud थी technically. Fraud. हाँ, वहाँ पे इतना रक्स हो गया था, सब लड़े जा रहे थे. कहाँ पे था ये? गुड़गांव में Club Passion, I still remember. Okay. So it was our very first experience and वहाँ पे 4-5 customers गिनती के आए थे पूरी exhibition में, इतनी लड़ाई के बाद. But that was the day जहाँ पे पूरे exhibition में से ज़्यादा हमारी sales थी. It was the first time And to have a वहाँ पे exhibition customers together. थे, oh really nice fragrance, oh nice. And then वहाँ पे जो strips हमने कुछ लोग लेके गए थे, apparently हमने गुड़गांव में दोबारा अगले दिन exhibition करी and वो strip लेके गए थे, इसी खुशबू अभी तक है, मुझे क्या ये मिल सकती है? कौन से वाला था प्रोडक्ट उस टाइम पे? Apricity था. Okay. Fragrance ना Yeah. And about even was a was there. female fragrance, Okay. Apricity, जिसके Right. लिए compliment आया था कि पेपर पे इतना लास्ट कर रहा है. Nice. So that was like the first, confidence booster that I Right. got. And fragrance तो obviously सबको बहुत different चीजें पसंद आती हैं. Hmm. सबका signature side बहुत different होता है. Yeah, we'll definitely talk about that क्योंकि बहुत सारे अलग-अलग fragrances हैं, अलग-अलग बहुत subjective topic है. Everyone will have a different, liking, different perspective. And कभी-कभी ये भी होता है you like something. मेरे साथ तो बहुत होता है ये. I like a fragrance but 6 महीने बाद आ जाता है कि why I bought it. I don't know तुम्हारे साथ होता नहीं होता but मेरे साथ हो चुका है ऐसा. Yeah, exactly. Then you should go and buy a new one. Yeah. And then there is something जो हमेशा रहता है शेल्फ में कि ये तो होना ही होना चाहिए, ये कभी खत्म नहीं होना देना. And I'll also tell you कि वो कौन सा है मेरे लिए. I'll also ask you out. But let's first start from the very basics and introduction. So इसको थोड़ा सा अलग करेंगे. We'll not do the traditional introduction. So first I want you both take turns and introduce yourself. And then I'll ask each other about each other's childhood. कि तुम बचपन में कैसे थे. I'll ask Shrutika about Yashika's childhood and I'll ask Yashika about Shrutika. So let's start with you, Shrutika. So tell us about yourself and about Seroma just a bit. So basically, my name is Shrutika Gambhir and I did my schooling from Summerfield School and then I did my graduation from College of Vocational Studies. When did you graduate? 2022, I guess. 22. Around 3 years back. 22, yeah. 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 No, 21. 22 में मैंने पास हाँ हाँ. 21 में होना था बट एक दो पेपर रह गए होंगे. नहीं वो पढ़ाई भी अच्छी थी शायद मेरे रह सकते बस उसके नहीं. She's an intelligent one. Yeah, she's intelligent man. तो उस टाइम पे बट जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ मेरे को था कीड़ा था, मतलब ऐसे हम बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते हैं, दूर दूर तक सब बिजनेस में ही है, Okay. पापा वाली साइड, मामा वाली साइड, वो वाली साइड में बहुत सारे लोग. तो अब ये था कि बिजनेस तो करना है. Okay. अब कॉलेज का फर्स्ट ईयर था तो आई वाज लाइक इन 3 सोसाइटीज और कोविड नहीं था उस टाइम, तो बहुत Okay. मस्त था फर्स्ट ईयर. मैंने आरसी मुझे से एक डिप्लोमा कोर्स भी ले लिया लॉन्ग डिस्टेंस कोर्स का. फिर पापा ने एक प्रोजेक्ट भी दे दिया कि इस पे रिसर्च करके देखो ये कर सकते हैं कि नहीं. इतनी सारी चीजें ले तो ली, तो बिजनेस पे रिसर्च कर रही थी एंड आई वाज लाइक रिसर्च करती बोर हो गई, तो ये अगर मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया बिजनेस तो कभी ये वर्क नहीं करेगा मेरे लिए. So something that I derive from this conversation is you wanted to do a business and then you identified perfume later. या Okay. that was Interesting. from the very beginning. वैसा ही Interesting. था. तो एक्चुअली गॉट टू सिम्बायोसिस. आई वेंट टू पुणे. Okay. बट मैं इतनी ज्यादा प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट में ग्रो कर रही हूँ कि मुझसे वहां पे रहा ही नहीं गया एंड आई केम बैक. Hmm. एंड देन आई एम फ्रॉम What do you mean? What do you mean? What was the environment? because I'm from a very bubbled environment, मतलब बहुत ही प्रोडक्टिव environment है. तो when I got there, so it was like, oh, हम बड़े हो गए हैं. You didn't resonate with the crowd there. Exactly, I didn't होता है. resonate with the crowd there, and then I got here. I got back, तो मेरा basically science background है. Right. And I wanted to switch to commerce. Okay. तो वैसे आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस रह जाते हैं जब मैथ्स नहीं होती बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए. तो जो था I made the most out of it. I mean मेरे कॉलेज में जितना मुझे ग्रो किया, I don't think so मैं वहाँ जाके Interesting. So you graduated, you wanted to do post graduation, but that didn't click with you. Then you come back. You have to I went for graduation. Graduation. Okay, you went for graduation and then you wanted to start something of your own and you wanted to come back and look into what you can do. Interesting. Yashika, what about you? Hi, I'm Yashika and I'm the co-founder of Seroma and I'm still in college. I'm in my 3rd year. I'm not that very intelligent one. मुझे ये था कि हाँ बिजनेस करना ही करना है, बट क्योंकि मुझे ये था कि मैं किसी की सुन नहीं सकती, तो मुझे इसलिए बिजनेस करना था क्योंकि मैं जॉब नहीं कर सकती थी. एंड मेरे पापा का पर्सपेक्टिव था तो ये मेरे अंदर भी आ गया. उसके बाद से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एंड देन
मैंने श्रुतिका के साथ स्टार्ट करा कि हाँ मैं इसकी हेल्प करती थी, मेरा इंटरेस्ट ग्रो हुआ. What are you studying currently? इंग्लिश ऑनर्स English honors, okay. फ्रॉम DU. एंड उसके बाद मैंने इसके साथ स्टार्ट किया. अभी भी आई गो विद हर एंड अर्ची जैसे स्टार्ट हुई बिजनेस में. You guys are still very young when it comes to having a business. But it's good that you have decided to start on your own, even while you were studying. And fun fact, I was researching about perfumes recently for this podcast, and I came to know कि जो फ्रांस में लोग परफ्यूम बनाते हैं उनको nose बोलते हैं. You know about it? So you two are young, talented nose sitting in front of me, and will also ask you to critique my collection later on. But now, Yashika, you tell me how Shrutika was, because you are the younger sister. So how you perceived her growing up? कितना support था? Tell me something interesting. She was not that supportive, I would say. वो बहुत ही शरीफ थी एंड मैं बहुत वो थी. तो जो भी मेरी कंप्लेंट्स आती थी, she used to go and tell मम्मा कि मम्मा इसने ये करा. Excuse me, in my defense, complaint करती थी, क्लास में आके खड़ा करके. Oh, you were in the same school. Yeah. ये सबसे बेकार recipe of disaster है. So me and my younger brother we were in the same school, and उसकी जो complaint होती थी वो मेरे पास आती थी, मेरी complaint होती थी उसके पास जाती थी, which is like a really bad thing. This is one way. इतनी कंप्लेंट्स नहीं आती है उनसे कि बहुत ज्यादा आती थी, बट हाँ एक पॉइंट के बाद आई थी एक दो, तो उसके बाद उसने जाके मेरे को सब. छोटे भाई बहन को फ्रस्ट्रेशन होती है कि हमारा बड़ा भाई सेम स्कूल में क्यों है. हाँ बहुत होती है, क्योंकि टीचर्स को ये था कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, आप क्यों नहीं हो. तो वो पॉइंट की ये था. तो हर जगह पे कि वहाँ पे सारे फ्रेंड्स जो थे वहाँ पे पॉइंटीज थे, तो वो मुझे पॉइंट करते थे, बातें मत करो, यहाँ से जाओ, ये करो, आपकी बहन तो खड़ी नहीं करते थे रेस्टोरेंट में. तो कि she was the one की बहुत ही ज्यादा ऐसे पेरेंट्स की जो प्रॉपर बैठी होती है ना कि हाँ यही हमारा बच्चा है बढ़िया. She was the ideal one, and everyone compared you against her. ना नो वन कंपेयर्ड. मेरे लिए अलग था एंड उसके लिए अलग था कि मैं बहुत फन हूँ अगर मेरा टाइम पास नहीं होगा. But benchmark बना दिया था श्रुतिका ने एक. हाँ बेंचमार्क बनाते थे, बट मुझे कभी ये नहीं कहा कि उसके चलो जाके गोल सेट नहीं करे थे कि दैट कि मुझे स्टार्ट करने का आइडिया किसका था? श्रुतिका. And then she invited you as a co-founder. Yeah. Why did you want your sister to be co-founder, not someone else? Because सबसे ज्यादा अंडरस्टैंड वही कर सकती है. Because the journey is very similar. हमारा थॉट प्रोसेस चाहे जितना भी कॉन्ट्रास्टिंग है, बट हम वेरी सिमिलर. हाँ इसे लड़ सकती हूँ. को-फाउंडर से लड़ूंगी तो भाग जाएगा. उनके घर में काम भी नहीं अब मैं सारा काम करती हूँ, सुनती भी हूँ, डांट भी खाती हूँ. नहीं करती. वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. आई थिंक जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है परफ्यूम्स की, उसमें द फर्स्ट परफ्यूमर वाज अ वुमन. And I don't know if you know about this. Mesopotamia civilization में they found some artifact, and her name was Teputi, and the first perfume factory was in Cyprus. So very very interesting fact. And मैं अपनी वाइफ से भी कल परसों बात कर रहा था. So my wife is also two sisters, younger sister. She's unmarried, and my wife is into baking. And she was casually telling me कि यार ये दो बहनों का स्टार्टअप ना चलेगा तो जरूर, और बहुत अच्छा होता है. She was giving me example. मेरे को पता नहीं था. Theobroma. Two sister startup, and there are a lot of other two sister startup, and a lot of them are really successful. So interesting. But tell me more about each other childhood. कुछ ऐसे interesting, कुछ जिससे लगाओ कि that was kind of a stepping stone into business, into perfume or anything. मतलब उस टाइम भी यूज करते हो परफ्यूम्स वगैरह, तो क्या प्रेफरेंसेस होती थी? Tell me something interesting. तो सबसे पहला परफ्यूम का हाँ। कीड़ा लगा था. आई स्टिल रिमेम्बर, मैं जब 18 इयर्स की हुई थी, मेरे डैड चाइना गए थे. Okay. तो वहां से वो ऐसी फ्लाइट से वापस, मैंने कहा परफ्यूम लेके आना मेरे लिए. तो 2-3 तो कम से कम लेके आना. ये छोटे बच्चे बर्थडे था, एक दिन पहले birthday था. नहीं था, उसके बाद उससे पहले start तो हुआ. कोई हाँ. परफ्यूम का इंटरेस्ट नहीं था. ना मैंने कोई बड़े ब्रांड सुने थे, ना मैंने कुछ ट्राई किया था. हाँ. Okay. तो पापा को नहीं पता था. पापा नॉर्मली गए, उन्होंने शनेल देखा, उनको समझ आया कि बच्चे ने कुछ मांग लिया, कुछ महंगा ले लेता हूँ. उन्होंने शनेल का गैब्रियल, जो एक थोड़ा मिडिल एज परफ्यूम है, स्ट्रॉन्ग, उसका नोज बिल्कुल ही डिफरेंट है. हाँ. वो लेके आए. और डियोर का जुदौर लेके आए. जुदौर वाज स्टिल समथिंग जो मैं 10th क्लास में लगा सकती थी, बट इमेजिन गैब्रियल जो एक नाइट टाइम फ्रेग्रेंस है, मैं स्कूल लगा के तो नहीं जाऊंगी. दैट वाज अ वेरी डिफरेंट थिंग. तो वहां से थोड़ा थोड़ा डेवलप हुआ. देन मेरे मामा मामी ट्रैवल करते थे, तो दे यूज्ड टू गेट मी, उन्होंने मुझे MK का एक बॉटल लेके दी. एंड देन उससे स्लोली होता है ना कि आपको कोई चीज इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है, तो यू स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट इट मोर. तो 10th क्लास से ही थोड़ा बहुत परफ्यूम में इंटरेस्ट तो था. मुझे कभी स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स, इन सब में इंटरेस्ट नहीं था. इसको मेकअप में बहुत मुझे इंटरेस्ट makeup है, में तो बहुत मुझे interest थोड़ा था. सा वहां से सीखने को इसने वाली ब्रांच डाली सिरोमा के अंदर, स्किन केयर वाली. Skin हाँ, care. skincare वाली, एग्जैक्टली. तो अब परफ्यूम का थोड़ा बहुत चस्का यहाँ से चढ़ गया. अब उसके बाद जब मैंने आपको बोला कॉलेज के फर्स्ट ईयर में कुछ करना था, मतलब पापा ने एक फार्मास्यूटिकल, पापा थोड़ा बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल्स बनाते हैं, तो उन्होंने फार्मास्यूटिकल का एक प्रोजेक्ट दिया कि अच्छा इसको करके देखो. Study करने इसमें हो गया. मुझसे नहीं हुआ, मुझसे जेन्युइनली नहीं हुआ. मैंने कुछ भी रिसर्च इधर उधर करके मैंने कहा पापा देखो मैच ही नहीं हो रहे. सेकंड ईयर आया, कोविड आ गया बाय चांस. एंड देन पापा वाज लाइक स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट समथिंग, श्रुतिका यू आर फ्री. बट मैं थी, देयर वाज अ सोसाइटी इन Actis
फन फैक्ट, मैंने यश को भी एक्ट्रेस में डाला पर ये छोड़ के आ गई थी, मुझसे काम नहीं होगा वहाँ पे. बहुत ज्यादा काम It's like a करती है। social entrepreneurial cell, and then I got into it, and मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था वहाँ पे काम. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिजनेस के बारे में तो सब कुछ सीखने को मिलता है. मैंने फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से काम किया. सेकंड ईयर आई गॉट वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन. थर्ड ईयर आई गॉट द प्रेसिडेंट वाला चीज. एंड उसमें आपको केपीएमजी के डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग होती थी हर 6 महीने में, एंड यू हैव टू प्रेजेंट योर बिजनेस, यू हैव टू आंसर एवरीथिंग. वो क्रिटिक करते थे हर चीज पे, एंड दैट वाज समथिंग सबसे ज्यादा मैंने उसी से लर्न किया है. मैंने नारसी मंदिर से बिजनेस डेवलपमेंट का कोर्स किया था. मुझे उतना प्रैक्टिकल नॉलेज जो सीखा मैंने नैक्टिस से सीखा. एंड आई फील मुझे इतनी डांट पड़ती थी घर पे. वो बोलते थे रोज चले जाते हो ये नैक्टिस में, एक बिजनेस का काम नहीं देखते हो, अपना बिजनेस करो, किसी और के लिए काम कर रहे हो. बट टू बी ऑनेस्ट उस टाइम सुन लिया, अच्छी बात थी. अगर मैं वो नहीं सुनती तो अभी जितना मार्केटिंग है, मतलब इनिशियली हम लोग सब कुछ खुद से ही कर रहे हैं. हमने बहुत मिनिमल कॉस्ट रखी है अपनी हर चीज की. अभी भी हमने छोटे छोटे इंटर्न्स रखे थे who could actually छोटे understand. interns. कॉलेज में जाने वाले College. बच्चे में 12th class. This is interesting. These were like small aha moments. You got introduction to entrepreneurship from a very young age, with your family being entrepreneurs and into business, and then you joined the society where you were meeting with business people. छोटे aha moments होते हैं. Very interesting. Tell me how Yashika was growing up, and when did you find that? कभी होता है siblings होते हुए भी we don't have that connect with our siblings. So when did you find कि this is someone that I can rely on? This is the person that I can start a company with. वो बहुत एक important factor होता है. So tell me how she was growing up and when did you have those moments? She's the funniest person in the entire family, to be honest. हम इसके साथ बैठते हैं, ये पूरा टाइम मजाक ही करती रहती है. मतलब पूरा दिन हम हंसते रहते हैं. कुछ ना कुछ इतनी अजीब सी बातें करती है कभी कभी तो, मतलब इसका नाम गप्पू इसलिए पड़ा क्योंकि ये जब खा रही थी, ये गोलगप्पे खा रही थी. शादी में जाके चटनी पर डाला तो खट्टा पानी गए ना. सो इसलिए इसका ये गप्पे मारती है और एक गोलगप्पे खाती है. That is the- How she was growing up? ऐसा कुछ नहीं था, वो पढ़ाई करती रहती थी एंड उसका कुछ नहीं था. वो पूरा टाइम अपने रूम Studious. में स्टूडियो 4 बजे उठ के पढ़ना, ये सब करना. और मैं कुछ और रिएक्शन जब श्रुति का आई और बोली कि चल यार एक कंपनी स्टार्ट करते हैं परफ्यूम्स की. अच्छा मतलब इट वाज, मतलब क्या था, ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं था. बट हाँ आई वाज हैप्पी क्योंकि ये था कि बिजनेस ही करना है तो कुछ तो करना ही है. तो इट वाज कि हाँ ठीक है बिजनेस करते हैं. एंड परफ्यूम एंड उसमें हमारे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि एंड उसके बाद हम थोड़ा सा लग्जरी की उसकी टुवर्ड्स भी इंक्लाइन होना शुरू हो गया था कि जब हम बड़े हुए थे हमें ब्रांड्स के बारे में पता चला तो हमें था कि ये ब्रांड लेना वो लेना है. तो उसके बाद हमने सोचा कि हम अपना परफ्यूम क्यों नहीं लॉन्च करते. एंड दैट वाज द थिंग जहाँ से हमारे को ये आइडिया भी आया कि हम अपना क्या करेंगे, लग्जरी अफोर्डेबल उसमें जाएंगे क्योंकि हर बंदा लग्जरी को अफोर्ड नहीं कर सकता. और अगर हम ऐसा ब्रांड बनाएंगे तो मे बी हम स्टैंड आउट कर सकते हैं. तो हमारा एक ये थॉट आया जब हमने उसके बाद वो स्टार्ट किया. Very interesting. So you both come from business families. I'm assuming all your life you have been living in Delhi with your family. You got exposure to high-end luxury brands because your family was traveling outside India and they were getting. Much later. Not, हाँ, 10th स्टैंडर्ड से पहले तो ऐसा नहीं. हमें कुछ आइडिया नहीं था. Okay. ब्रांड के बारे में ट्वेल्थ से भी पहले, मतलब 12th में आके, अब हाँ. कॉलेज में आके, उसके बाद देन ओनली वी स्टार्टेड कि हम अपना ब्रांड को ऐसे मतलब तो बहुत उसकी तरफ लेके जाएंगे, ऐसे इंक्लाइन करेंगे. And you have this mental model कि किसी और के लिए काम नहीं करना. You want to. ये तो शुरू से ही था. हाँ. Okay, and how I'm still trying to figure out कि ये सारे stars align कैसे हुए and why a perfume company. So tell me something कि ये समझ में आता है कि you had a business background and you had an interest and building something of your own. ये भी समझ आता है कि on the side you were having you know you were very much into perfumes and fragrances. खुद का perfume start करना, because I'm talking about an industry which is like a $50 billion TAM and very very competitive industry. बहुत ज़्यादा competition है और ये ऐसी industry जिसके अंदर some people they swear by their perfumes, right? So ऐसे industry में being very young professional, why did you want to in the first place क्या research की थी? What was your research? Did you do any market research? Did you travel outside and check? So tell us about that. सो बेसिकली जब पीक कोविड था सेकंड ईयर में, हमारे पास ज़्यादा काम नहीं था कॉलेज में, ड्यू में पढ़ाई भी नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था. तो अब क्या था, पापा ने बोला था कि बिजनेस रिसर्च करते रहो. अब मैंने देखा उससे पहले भी हमने और भी हाँ, करी उससे थी. मेरे क्या करना है वो करते रहो, जब क्लिक करे मुझे बता देना. बताना, मतलब 2-3 बिजनेस मॉडल्स मैंने फर्स्ट ईयर में रिजेक्ट किए हैं अपने Okay. कॉलेज के. सेकंड ईयर में आई थॉट कि ये बहुत बोरिंग है काम करना रिसर्च वाला, तो कोई ऐसी चीज देखनी है जो इंटरेस्टिंग लगे रिसर्च करने में, क्योंकि पापा तो प्रेशर दे रहे हैं. तो मैंने फिर परफ्यूम्स के बारे में पढ़ना शुरू करा. एंड देन सबसे पहली रील जो थी, आई रिमेम्बर, रील नहीं सॉरी उस टाइम तो यूट्यूब देखते थे हम, तो एक यूट्यूब पे एक रील देखी मैंने, जौहरी मल करके चांदनी चौक में एक अत्र वाला है विच इज लाइक बहुत ओल्ड, Very 100 famous, ईयर ओल्ड शॉप. एंड वहाँ पे वो जाके ना अत्र टेस्ट कर रहे थे डिफरेंट. एंड मैं लाइक भाई ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है.
उसके बाद मैंने और चीज़ें देखी एंड देन आई ऑलवेज हैड दिस थिंग कि कुछ लग्जरी में करना है बिकॉज इट्स फन. मुझे बचपन से How do you define luxury? it's something that I would crave. I would want it to be. You look forward to it. I look forward to. I feel confident when I wear it. Hmm. So confidence is something which luxury से आता है. I don't know why. Ambitious. हाँ, ambitious, exactly. So this will reflect on your personality एक तरह से. तो अब क्या हुआ कि वो वीडियो देखी एंड उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ परफ्यूम्स में देखते हैं, कुछ करना शुरू करते हैं, रिसर्च करते हैं. अब वो रील पे रील मतलब होता है ना, आप यूट्यूब पे घुसते हो. उसके बाद एक और परफ्यूम गायक था, उसमें वो प्रॉपर ना बता रहा था कि ब्लेंडिंग कैसे होती है, अकॉर्ड्स कैसे बनते हैं, और डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स की डिस्टिलेशन किस पे होती है, किस टेम्परेचर पे होती है. कुछ कन्नौज की वीडियोस थी जहाँ पे इतने बड़े बड़े उसमें वो रोज और वो सब हो रहे थे ना. वो बेस्ट टाइम था किल करने. टाइम किलर चाहिए था कोविड के टाइम पे. कुछ नहीं होता था करने को. टीवी कितना देख लोगे, Right. नेटफ्लिक्स कितना देख लोगे, एंड समथिंग जो इतना मैं बहुत स्टूडियस थी, तो मुझे ये सब चीजें नेटफ्लिक्स वगैरह इतना नहीं समझ आता था उस टाइम पे. And this is even funny because you started just by watching YouTube videos. You developed an interest क्योंकि business के लिए मुझे ऐसा लगता है कि you really need something that you click with. And YouTube, things like platforms like social media, they give you the algorithm. They shows you something that you are interested in, and eventually you can learn everything on that platform. And that's what you did. बिकॉज बुक्स वहाँ पे आप कोविड टाइम पे बुक्स भी कहाँ से मंगाओगे ना, कुछ चल रहा है. तो इट्स लाइक द बेस्ट थिंग था कि आप कहीं से भी, सब रिसोर्सेज वहाँ थे. जैसे ही कोविड का लॉकडाउन खुला, आई वाज लाइक मैं चांदनी चौक जा रही हूँ, मुझे स्टॉप देखनी है. Do you think COVID ना होता तो you would have started this company? आई डोंट थिंक सो. Okay. So थिंक वुड हैव बीन वेरी Yeah, डिफरेंट. it was a good black swan event in that regard. या एग्जैक्टली. और उस टाइम पे ना बेला वीटा भी बहुत ज्यादा Right. वीडियोस आ रही थी, हाँ. तो मैंने कहा कि इस चीज से हम बेटर कर सकते हैं, समथिंग बेटर देन दिस. तो वो थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया. नाउ मैं जैसे ही कोविड का हुआ, मैं लॉकडाउन में गई चांदनी चौक और मैं सारे एसेंशियल ऑयल्स जितने भी थे मैं सारे ले आई. आई हैव दिस ह्यूज पैलेट मैंने कहा, बिकॉज अगर तुम्हें कोई चीज करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैशन ड्रिवन होना चाहिए इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा आप नहीं कुछ कर पाओगे. सेकेंडली यू शुड नो एवरीथिंग. तो मैंने हर एक को पहले चेक किया कि हर एक नोट की स्मेल क्या होती है, कि मतलब बर्गमोट कैसा स्मेल करता है, पचूली कैसा करता है, ऊद के कितने वेरिएंट्स हैं, सैफरन, सैंडलवुड, सडारवुड, सब कुछ मैंने. And developed your olfactory. एग्जैक्टली. सो आई हैव लाइक अ वेरी गुड नोज अब, क्योंकि आई नो अब वो सैचुरेट भी नहीं होता है, बिकॉज इतना कुछ स्मेल कर लिया है तो अच्छे से हो गया. फिर अब मैंने एक प्रॉपर, आई गेस परफ्यूम वर्ल्ड था, पता नहीं क्या था नाम, आई डोंट इवन रिमेम्बर. उसकी ना एक प्रॉपर सीरीज थी, मतलब आई गेस उसमें 20-25 एपिसोड्स थे, उससे ज़्यादा ही थे. मैंने हर एक देखा, उसमें हर एक का दिखाया हुआ था कि कैसे एक अकॉर्ड बनता है, कैसे ब्लेंडिंग होती है, किसको किसके साथ लेयर करना चाहिए, कौन सा अकॉर्ड में कितने ड्रॉप्स लेंगे तो अच्छा बनेगा. कितना टाइम लगा इस प्रोसेस में when you were like कि ठीक है अब मैं इसमें बिजनेस बना सकती हूँ? Almost a year. Almost a year. Almost a year. And that was your own research by doing. या Okay. And you were sourcing products locally. अब तो थोड़ा सा, हाँ अभी तो हम लोकली कुछ ज़्यादा मिक्सिंग वगैरह करके देखते हैं क्या मैच कर रहे हैं क्या नहीं स्टार्टिंग कर तो रहा. यही Starting में था. तो स्टार्टिंग में only, मुझे हाँ. आइडिया नहीं था, इतना बड़ा स्केल तो नहीं, मैं मैंने समझा सोचा ही नहीं नहीं था. था. Exactly. हाँ. स्टार्टिंग में बस यही था कि मैं खुद के फ्रेग्रेंसेस ब्लेंड करूंगी खुद से. पहले तो सोचा था कि Customize करके sell करेंगे. बट देन आई रियलाइज कि वो बहुत टीडियस टास्क है. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द टीडियस टास्क, बट उसका ना टाइम ही, मुझे अगर मैं कस्टमर को 2 महीने बाद एक फ्रेग्रेंस दे पा रही हूँ तो वो कस्टमर इतना नहीं खुश होकर लेगा. Right. एंड उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा जाएगी उसकी, बिकॉज हर एक फ्रेग्रेंस की टेस्टिंग है, हर एक फ्रेग्रेंस की बहुत सारी चीज़ें हैं, और गवर्नमेंट के कुछ लाइसेंसेस भी हैं जो हम खुद से करती तो फिर बहुत टाइम लग जाता. तो ब्लेंडिंग का काम बहुत इंटरेस्टिंग होता है. जस्ट इमेजिन कि आप अगर मुझे 2 अकॉर्ड करने हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू मिक्स रोज विद जैस्मिन, तो आप उसको कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हो. यू पुट 1 ड्रॉप ऑफ रोज, 9 ड्रॉप ऑफ, Concentration change कर करके you can make different products out of it. Exactly. And you can check कि कौन सा पसंद आ रहा है, किसको आ रहा है. परफेक्ट हो Very रही है. interesting. वेरी इंटरेस्टिंग. एंड टॉप नोट्स, मिडिल नोट्स, बेस And YouTube पे सीखा. हाँ. Wow. सब कुछ. तो उसके बाद कुछ ऐसा कुछ क्लिक किया कि यार इसकी कुछ फॉर्मल एजुकेशन टाइप भी ले सकते हैं, या वी कैन रीच आउट टू सम पीपल हु आर इनटू इट. हाँ एग्जैक्टली. सो दैट वाज माय पॉइंट. नाउ आई थॉट कि या तो मैं अब बाहर जाके प्रॉपर 2 इयर्स का अच्छे से कोर्स करके आऊँ इस चीज के अंदर, कोर्स होता है इसका परफ्यूम मेकिंग का. Okay. होता है प्रॉपर, या तो इसमें जाना था. बट अगेन फर्स्ट चीज थी बिजनेस क्रिएट करना है. Yeah, that what I derived from your conversation previously. जो आप बोल रहे थे ना, you were into societies and all. So you are the person I think that learn by doing, not by Practical reading books or things Exactly. like I that. feel Are you the same? Learn by doing. हाँ. अच्छा. Exactly the same, हाँ. पढ़ाई हो गई 12th पढ़ाई तक. प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब तक तुम घुसोगे तभी उतना आपको तुम्हें पता पता करके देखते हैं, हाथ जलाते हैं, नहीं हुआ तो फिर देखेंगे क्या करना है. Exactly. Exactly.
आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ट्राइंग थिंग्स, मतलब छोटी एज में भी जैसे बस कूद जाओ, देखेंगे उसके बाद जैसे क्या होगा, होता थिंग्स आती रहेंगी, यू विल वर्क विद इट, यू विल हैंडल Right. थिंग्स, ऑब्स्टिकल्स चलते रहते हैं. You know, referring to the study, जिसमें 50% लोगों ने बोला है कि by just applying perfume they feel more confident. हाँ. That is true. Right. And India अभी is a very fast growing economy. And जब हम एक threshold cross करते हैं per capita GDP में, people look for more luxurious thing. People want to get more ambitious stuff. And perfume is something जो कि एक back of the mind रहता है कि यार at least एक अच्छा होना चाहिए shelf में for those days जब हम जाएंगे किसी date पे जाएंगे या शादी पे जाएंगे. And ऐसी भी फर्स्ट चीज होती है जो हम लग्जरी खरीदते हैं कि परफ्यूम सबसे महंगा खरीदेंगे. हाँ. ये हमारा होता है, चाहे हम कपड़े भी नहीं लेंगे बट हाँ परफ्यूम लेते हैं, ये ब्रांडेड है, ये Yeah, लेके I remember मेरे साथ भी ऐसा था when I got my first paycheck, I literally bought one of my most expensive perfume in that collection. वो होता है. But my question is कि there are already a lot of brands in the market. बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जिन लोगों ने सेटल कर लिया अपना नाम, चाहे वो इंटरनेशनल ब्रांड हो, इंडिया वाले ब्रांड्स भी अभी आए हैं. You mentioned Bella Vita, there are few more who are took opportunity of this growth story of India and they got into the market. But why Seroma and why India needs another perfume brand? What's your differentiating factor? So the three things We- जो हमारा बिजनेस का कोर है, फर्स्ट इज अफोर्डेबल लग्जरी. वी डू, अगर आपको बाहर जाना है ना, आप एक एक्सपेंसिव 10,000 वाला परफ्यूम यूज करोगे, लेकिन आपको एक ऑफिस जाना है ना, तो आप नहीं आपको लगाओगे. एक नॉर्मल परफ्यूम चाहिए जो आपकी पॉकेट को सूट करे. And आपको ऐसा भी नहीं चाहिए कि बहुत ही ज्यादा हाँ, सस्ता हो या बहुत ही last लास्ट ना ना करे. करे, बट आपको ऐसा चाहिए कि हाँ ठीक है, ऐसा अच्छा है कि आपने उसको लगाया ना, आपको अच्छा लगा ना, आपके साइड में लोगों को भी अच्छा लगे. Long lasting affordable luxury. Exactly, that's the So point. three things. First is affordable luxury. Second is all our fragrances are made in 25% concentration. That is more than your normal EDPs. अभी जितने भी मार्केट में ब्रांड्स हैं, they give you 12% से लेके 20% मैक्सिमम जाते हैं. People care about this number, 25% concentration. Yes. We educate them because उनको पता ही नहीं है पता ही नहीं है कि क्या है, क्या नहीं. मेरा भी यही ऑब्जर्वेशन है कि आई डोंट नो बट देयर आर सम सर्कल्स दैट आर सेट विद एंड दे डोंट केयर अबाउट ईडीटी ईडीपी परफ्यूम. दे जस्ट केयर कि अच्छा स्मेल करता है, लॉन्ग लास्टिंग है. बट कुछ लोग ज्यादा वो है. ही नहीं अगर कंसंट्रेशन नहीं है, तो they don't know the entire Right. science behind So it. you try to educate people about the concentration and you have kept a benchmark of 25% concentration. Yeah. उससे कम तो नहीं जाना है, उससे ज्यादा ही हम करेंगे फ्यूचर में भी. That is why it becomes long lasting. Exactly. What Exactly. एंड थर्ड इज हमारी सारी फ्रेग्रेंसेस यूरोपियन उसके हिसाब से हैं, यूरोपियन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हैं. लेकिन बिकॉज अगर आप यूरोप का वेदर देखेंगे एंड यहाँ का वेदर देखेंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस है. वहाँ पे ठंड में फ्रेग्रेंसेस ऑब्वियसली ज्यादा लास्ट करेंगे. यहाँ पे इतनी गर्मी है, आप बाहर निकलोगे 40 डिग्री में, कहाँ फ्रेग्रेंस लास्ट करेगी. सो दैट्स वाई हमने उसमें इंडियन वेदर के हिसाब से उसको लास्टिंग लॉन्ग लास्टिंग बनाया है. बट हमने यूरोपियन टेक्सचर जरूर लिखा है बिकॉज सबको वेस्टर्न फ्रेग्रेंस चाहिए, सबको वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चाहिए. होते हैं यूरोपियन कैरेक्टरिस्टिक? लाइक इफ आई आस्क यू व्हाट मेक्स अ परफ्यूम say it's a European perfume, क्या होता है उसके अंदर? The ingredients used, for example, if I talk about oud, if I talk about ऊद से मेरे को instantly Middle East and दुबई वो सब याद आता है. exactly, अगर आप थोड़े से और अरबिक वो चले जाओ, जैसे सैंडलवुड हो गया या फिर सैफरन हो गया, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको एम्बरवुड फिर थोड़ा फ्रेंच आ जाता है. Okay. मस्क, जैसे मस्क हो गया Musk. फ्रेंच में जाएगा, तो इट्स लाइक फ्रेंच परफ्यूमरी और इसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है. सो नाउ ऐसा नहीं कि हमारे पास ऊद नहीं है, हमारे पास ऊद है, बट वी ऑल्सो हैव अ वेरी सटल ऊद. वी हैव मेड श्योर कि वो बहुत पिक्यूलियर ऊद नहीं है जो आपके सर में दर्द करेगा. इट्स एन ऊद जो आप एवरीडे ऑफिस में जा सकते And even in हैं. parties, क्योंकि वो ऐसा भी है कि पार्टीज में यूज हाँ. होता है, सो वो दोनों का काम करेगा. Exactly. Interesting. So, if I recap, so you were looking for something to start on your own, then you got into this mixology of perfume. उसमें तो cocktails बनाई, बहुत सारी try करा. You cracked something that you enjoyed, and you also had some sort of a business model in mind. You reached out to your sister, and she agreed. Okay, I have nothing else to do as of now, so I'll become your co-founder. उसके बाद क्या हुआ? Did you reach out to your dad? What was their reaction? Parents को जब बताया कि we want to get into a perfume industry, start our own brand, तो उनका क्या reaction था? He is very Very supportive. supportive. To be honest, मतलब we are till now we are bootstrapped. We have not taken any funds, and then उनका ideology यही है, तुम proof of concept लेके आओ, तुम अच्छे से product develop करो, तुम market ढंग से करो, उसके बाद when you have everything on the plate, then go to the table and then negotiate, because then तुम अपने हिसाब से negotiate कर सकते हो. तो वो चीज हमने रखी है. एंड टू बी ऑनेस्ट, अभी भी ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ काम ज्यादा जाते हैं, कुछ ज्यादा ऑर्डर जाते हैं, तो पापा खुद पैक कर रहे होते हैं साथ में. He's like, very he's that helping and he's very supportive. supporting. Supportive parent, that definitely helps. And in terms of the reaction, जो first reaction था सुन के, वो कैसा था? क्योंकि वो supportive थे, but उन्होंने question किया your decision to get into perfume. They were like कि
it's a really saturated market, कुछ inputs वगैरह. थी नहीं थी. आई एम टॉकिंग अबाउट 2022 2021. उस टाइम बहुत लिमिटेड प्लेयर्स थे. सेकेंडली जो हम मार्केट टैप कर रहे हैं अभी भी बहुत लिमिटेड प्लेयर्स है उसके अंदर. Okay. We are trying to tap the affordable luxury segment, that is the middle segment. Now you see there are many brands which are ranging from 6,000-7,000 to मतलब LV वगैरह के 40,000, वो सब ऊपर आ रहे हैं. Then we have mass market brands. Mass premium is the today मतलब अभी जो डिमांड में है. जितने भी मास प्रीमियम ब्रांड्स आज की डेट में आ रहे हैं, they're all growing. They're having their own benchmark इस टाइम पे. So this is the market that we're tapping. We are not here to मतलब we are there. If you're using a branded fragrance, you'll have something in lower budget उसी में. We're not selling dupes. Dupe वाली market बहुत सैचुरेट हो चुकी है. We are maintaining our originality. We are trying to capture that particular white space कि आपको everyday के लिए थोड़ा normal mediocre वाला fragrance चाहिए ना, आप रखो अपने अच्छी वाली fragrances पार्टी के लिए और हमारी भी लगा के देखो normally. आपको कोई difference नहीं पता चलेगा, but हाँ आपको satisfaction भी मिलेगी, आपको confidence भी मिलेगा, वही जो आपको branded से मिलता है. एक ना परफ्यूम नॉस्टैल्जिया करके चीज होती है. लाइक देयर आर सम फ्रेग्रेंसेस दैट यू अटैच टू सम पीपल एंड वो जब कहीं सूंघते हो ना याद आता है कि यार ये उसकी फ्रेग्रेंस है, ये उसकी फ्रेग्रेंस है. सो व्हाट आर योर फ्रेग्रेंसेस? ऐसा कुछ है कि ठीक है सिरोमा तो भी है ही, उसके बारे में बात भी करेंगे, बट बिफोर सिरोमा व्हाट वर द ब्रांड्स दैट यू वर लुकिंग अप टू? क्योंकि ऐसा कहना कि वी आर ओरिजिनल, ये तो एक मुझे लगता है कि झूठ है बहुत बड़ा, क्योंकि वी ऑलवेज टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम समवन. Yeah. और वो इतना इंग्रेन्ड होती है हमारे माइंड में, हमें पता भी नहीं होता है दैट वी हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम समवन, एंड वो कहीं ना कहीं आती है. एंड आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट एज वेल कि कौन कौन से ऐसे ब्रांड थे दैट यू वर यूजिंग, कौन कौन से ब्रांड है दैट यू आर स्टिल यूजिंग इवन दो नाउ यू हैव योर ओन ब्रांड. आई एम श्योर देयर विल बी फ्यू. एंड कौन कौन से ऐसे ब्रांड है दैट यू हैवंट यूज्ड बट यू लुक फॉरवर्ड टू यूजिंग इट वन डे? So We used to use YSL's Dior हाँ, and so the very first fragrances Dior का जो J'adore है, हाँ. जो मेरे पापा 10th standard में लेके आए थे, that is very close to my heart. उसका वो fragrance हमेशा मेरे पास रहता ही है. Then Gucci Bloom is something which I used to use quite often. अब but तो now we सिर्फ don't वही use it. करते हैं. Now we're using It's like Stella. party के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है. But हाँ, these are some fragrances And which our are very favorite close is जो to. अभी भी, that is Calvin हाँ. Herrera. हाँ, Calvin Herrera, very good girl. That is something which I still use. Because वो fragrance Exactly. इतनी ज़्यादा अच्छी है. It's like बहुत amazing fragrance. Really good recommendation. मैं US गया था and I was like so annoyed. Everyone is using Dior Sauvage या फिर YSL का one. It is like so mainstream now and you cannot stand out with those perfumes. So Exactly. I'm always on to look out onto कोई niche वाला मिल जाए तो किसी ने लगाया हो. And I remember my perfume when I started earning some handsome paychecks. मेरा था Tom Ford का Ombre Leather. And मेरे को लगता था कि यार ये तो कोई नहीं लेगा, इतना महंगा बॉटल है ये वो. And it is so mainstream now, हर कोई लगा रहा है. But it's still my go-to winter fragrance. If I talk about summer, I really love Lacoste White. Good perfume, not very expensive. मैंने एक चीज और करी थी. What I did is जब मेरे को पता लगा कि यार you can also blend perfume, then I started making my own fragrances, 2-3 perfume blend करके. So वो वाला अभी भी है कल्चर, लोग करते हैं ऐसे कि blend करके अपना perfume बना लिया. हाँ, and वो बहुत लोग करते हैं. हाँ. Like classes भी होती हैं अब तो बहुत लोग Okay. हाँ, it's an जिसमें वो experience. Exactly. It's an experience, right? But obviously you can't be perfect उसके अंदर because वो बहुत डिफरेंट चीज चीजें स्टडी हैं, करनी पड़ती है, मतलब हर चीज करनी पड़ती है. बट हाँ आप कर सकते हो, बट वो इतना आई गेस लास्ट नहीं करेगा. बट मे बी आप हाँ, अपनी मतलब अच्छी fragrance अपने चॉइस के अकॉर्डिंग फ्रेग्रेंस वो बना सकते हैं. टाइम लगता है Mature मैच्योर होने होने में. में. तो वो सब चीजें नॉर्मली एक दिन में नहीं हो में सकती नहीं आ जब आप सकती. करोगे. हाँ. So let's talk about the brand building process. How did you come up with the name? शुरू में कैसे brainstorming हुई, क्या कर research करी? Manifesto you already talked about your if you wanted to be affordable luxury, you wanted it to be long lasting, you want European characteristics with the Indian weather. और क्या था like when you talked about these all things, ये सब आता है product category में, but branding is very important. In fact, one of the study that I was reading is 80% of जो perfume की appeal होती है ना, वो सिर्फ packaging और branding में होती है. Like even if it's a shit product inside, if a packaging is good, people are still buying it. So talk us about the journey brand building में, जब से name किया, packaging उसके बारे में बताओ. So one of the customers only हमें उन्होंने बताया कि आपकी पैकेजिंग तो 7-8 thousand वाली है, आप इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो इसको 2-3 हजार में भी. जो recent packaging recent है. packaging है, the one which we have launched अभी प्रीवी कलेक्शन. तो उनका खुद का ही रिव्यू था, तो मतलब मे बी हमारी शायद अच्छी पैकेजिंग होगी जो उन्होंने और अभी तक यहाँ पे जब शुरू कर रहे थे उस टाइम पे क्या माइंड में था? अच्छा था, बाकी ब्रांड से अच्छा था, बट इतना अच्छा नहीं था. अब वी हैव इम्प्रूव्ड, हमें चीजें पता चली, हमें टाइम, हमने देखा मार्केट में कैसा है क्या है.
तो नाउ वी विल से कि हमारी अच्छी है. नाम का इंस्पिरेशन कहाँ से आया था? That was serums plus aroma. Okay. That was skincare and aroma is fragrances. तो इसे Okay. aroma So है. it's aroma. It's an Okay. amalgamation of two words. To be honest, I wanted Arne as our brand name, but trademark नहीं मिला. तो इसलिए we got something like this. Okay. So that is the thing. तो हाँ, still Arne. And उसके बाद हमने एक और वो सोचा था. Cyril. So सोचा it's like a very big journey. पहले एक ट्रेडमार्क किया, फिर दूसरा लिया. फिर वो भी नहीं आया. 6 months के span में इतना delay और वो सब चीजें. It was another roller coaster ride to even get a name in India. How long did it take you to launch your first product in the market? 2 years. 2 years. नहीं 1.5 year 2 2 years from से पहले research. रिसर्च भी और doing हाँ almost Right. 2 years हाँ. और पहला बिका कब था? पहला बिका था उसके 6. नहीं नहीं. जब हमने अप्रैल में लॉन्च उसके तब हमने रिलेटिव्स और सबने लिया था. उसके बाद So हमने April 23 you launched. या Okay. सो बेसिकली हमारी फैमिली इज लाइक वेरी सपोर्टिव. Yeah. सबने सबने लिया. सबको अब हम समझ जो नहीं लेता उसको फिर बाद में बता देंगे. लेना तो पड़ेगा ही. हमने ऐसे एक अपने घर पे ऐसे पार्टी रखी कि हमने अपना ब्रांड लॉन्च करा है, तो आप आओ और खरीदो. और बेकरी के हमने भी did a launch party and we took name of all the people जिसने नहीं खरीदा था हमसे. इट्स अ गुड स्ट्रेटजी यार. फर्स्ट टाइम आगे ऑर्डर. उसके बाद जब सबने खरीद लिया शर्म में खरीद लेते हैं. वो तो ऑब्वियस ही था. उसके बाद फैमिली जब के बाहर किसने खरीदा सबसे पहले और वो कब हुआ? कितना टाइम लगा? वो उस एग्जीबिशन में ही हुआ था शायद. नहीं पहले कब हुआ? नहीं उससे पहले हुआ था. नहीं उससे पहले भी एक लड़की थी युक्ति. आई स्टिल रिमेम्बर. वो मेरी फ्रेंड के फ्रेंड की फ्रेंड थी. Okay. अपेरेंटली नॉर्मल एक कॉन्वर्सेशन में वो रनर्स क्लब में थे कुछ एंड उन्होंने कहा मेरे को परफ्यूम लेना है. उन्होंने कहा हाँ इसने शुरू किया जस्ट ट्राई इट आउट. That was the first order. Yukti, if you are, if you can listen, I was like, I'm very grateful because वो online पे मैं trust करना is very difficult because Right. I have no followers, nothing. So that was my very first order and I was so happy. And उसके बाद धीरे धीरे कुछ classmates ने, कुछ college के लोगों ने, actors के circle ने लेना शुरू किया. Hmm. And then proper sales जो है वो अगस्त में जाके शुरू हुई. Okay. उससे पहले अब प्रोडक्ट अच्छा कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट समझ नहीं आया कि बेचना कैसे है. फीडबैक भी चाहिए होती है. पहले एक दो लोगों को दिखा दिया, पता कर लिया कैसा है. एंड हमें समझ नहीं आ रहा था हम इसको अब कहाँ सेल करें. मैंने सोचा इंस्टा पे करेंगे, पर इंस्टा पे भी अब क्या करें कुछ पता ही नहीं था. उसके बाद हम बैठे रहे कि कुछ कैसे बेचेंगे, कुछ करेंगे, कुछ तो करेंगे. तो उसके बाद हमने सोचा एग्जीबिशंस करके देखते हैं. तो हमने वहाँ पे वो करा. उसके बाद हमें बहुत टचवुड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. एंड अभी तक हम एग्जीबिशंस कर रहे हैं कि हम एक कस्टमर से बात कर पाते हैं ढंग से, उनसे उनका फीडबैक ले पाते हैं. तो दैट्स वेरी गुड कि हमें समझ आ रहा था कि क्या हमारे में लूप होल्स है हमारे ब्रांड में. Okay, you guys have 2 stores in Noida, and I visited one of the store. It's it feels quite premium, quite luxury. काफी अच्छी white theme है, black color के boxes अंदर है, तो काफी अच्छा contrasting लगता है. And you want to go inside and test it out. So let's talk about some finances. So starting में you mentioned that you guys are bootstrap in an industry which requires a lot of capex. बहुत capex चाहिए इसके लिए. You need bottles, you need packaging. So how much initially your dad helped you with the seed funding? Tell us about that, and let's talk about some finances. कितना time लगा? Are you like profitable? Did you break even at some point? Let's talk about that. So initially, obviously, dad invested and it was like he was very supportive. But हमारे पापा का हमेशा से ये चीज रही है, कभी भी ना खर्चे मत बढ़ाओ. पहले प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लो, उसके बाद सोचना खर्चा बढ़ाने के लिए. अगर आप एक हायर भी कर सकते हो ना फाइनेंस वाले बंदे को, मत करो, खुद से काम करो. खुद से काम क्योंकि करो, हर चीज हम खुद ही सीखने करेंगे. Education का वही रहता है कि you need to be a profitable business from day one. मेरी वाणी आज वो exactly. समझ नहीं आता. जेकर होता है ना कि यार 8-10 साल पैसा बंद कर रहे हैं, 11वें साल एकदम से हो गया, बट वो हमारे डैड जनरेशन को वो समझ नहीं आता. एंड वो ठीक भी है कि आपको हाँ, exactly. मोटिवेशन नहीं मिलेगी. अगर आप लॉस देखते रहोगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे. क्या है यार ये बंद ही कर दो इससे अच्छा. दैट्स Well, exactly. So that was like something that I have learned from him. अभी तक वो अपने बिजनेस में So you have that same mindset कि हमें मतलब जितना जल्दी हो सके we need to break even. जितना हमने जितना invested जल्दी हो सके profit आए. आए. we need to take it back. To be honest, from the मतलब फर्स्ट ईयर के एंड तक ही हमने ब्रेक इवन कर लिया कर था. लिया था. मतलब Oh, फर्स्ट ईयर very क्या fast अगस्त से मार्च कितना ही होता है. हमने अगस्त में शुरू किया था. बट उसके अब बाद हमने हमने फिर अब हमने स्केल करना शुरू किया है. तो स्टोर्स और वो सब इन्वेस्टमेंट्स और वो सब हो रहा है. बट हाँ मतलब इट वाज वेरी गुड फ्रॉम वो चीज. Like 8 months you break even in this business. Wow. हाँ बट अगेन नाउ वी इन्वेस्टिंग. नाउ वी आर इन्वेस्टिंग. हम तो इन्वेस्टिंग ला रहे हैं. तो अब भी आर नॉट उसमें, बट हाँ पहले थे. Obviously वो रहेगा कि स्टार्टिंग कोई भी नया बिजनेस हो उसमें री इन्वेस्टमेंट चलती रहती है. एंड आई थिंक दैट्स हाउ यू स्केल, दैट्स हाउ यू बिल्ड अ कम्युनिटी, दैट्स हाउ यू गेट ऑल द न्यू कस्टमर्स. यू मेंशन अबाउट वन ऊप्स मूवमेंट कि यार बना तो लिया, इसको बेचे कैसे. और बहुत सारे होंगे आई एम श्योर ऊप्स मूवमेंट बिकॉज़ यू गाइस आर वेरी यंग डूइंग बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम. सो क्या क्या ऐसे चैलेंजेस थे ऊप्स मूवमेंट दे कि यू हैव अ प्रोडक्ट, यू हैव सम सॉर्ट ऑफ सप्लाई चेन्स, यू हैव सम इन्वेंटरी, बट उसके बाद कुछ ना कुछ तो होगा ऊप्स मूवमेंट. बहुत सारे थे क्योंकि हम दोनों लड़कियां हैं तो कोई सुनता ही नहीं है मेरी बात हमारी. एंड हाँ मतलब उनको लगता है कि हम छोटे भी हैं
तो ये पागल वाली बातें ही कर रहे होंगे. challenge, yeah, that is That is a very challenge. big challenge and इसको हमें ओवरकम करना है. इस वो कि हम थोड़े से बोल्ड हुए कि हम उन्हें अपने बोलते हैं कि नहीं ये करना है तो करना ही पड़ेगा. तो ये चीज अब हम उसको वो कर रहे हैं. Young woman entrepreneur challenge. How do you address that as of now? ना तो I'm very मतलब अब तो कॉन्फिडेंस हाँ, आ she's गया very handle bold, थोड़ा सा वो करते-करते। डांट लेती है बट मैं तो मैं डांट डांट लेती लेती हूँ. हूँ। पहले हाँ, पैसे कमाए नहीं, पैसे गवा दिए पैसे गवा दिए हैं लोगों उसके ने. बाद समझ आया कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, डांटना पड़ेगा. कोई नहीं मान रहे तो फिर यू हैव टू बी लाइक वेरी करना पड़ता है अपने बिजनेस के लिए यार, नहीं तो वही. तो दैट इज अब क्या है, इनिशियली अगर आप कॉल भी करोगे ना किसी को कि अच्छा हाँ मुझे ये इतना मटेरियल बनवाना है थर्ड पार्टी, क्या कितनी मतलब वो अगर आप उनकी फैक्ट्री में भी जाओगे ना तभी वो कहेंगे छोटी सी बच्ची क्या है ये, but हाँ वो still सुनते ही लेते नहीं थे पहले तो. हाँ तो इनिशियली तो एक दो बार खुद से गए, फिर पापा को लेके गए. पापा को लेके जाओ तो काम हो काम जाते हैं, हो जाते अकेले हैं. जाओ तो काम नहीं होता. ये कैसे और ये लगती भी एक हो पे कि ये क्या है. और सेम बात बोलो तब भी. भाई तो मैं क्या फारसी बोल रही थी, नहीं समझ आ रही थी आपको लैंग्वेज. तो वो एक चीज हमेशा से बहुत बड़ा चैलेंज है. And एंड to वो be अभी भी honest, है बट हम उससे हाँ अभी भी एक बहुत बड़ा वो है चैलेंज है. अभी भी. क्योंकि अभी भी अगर मैं नए वेंडर के पास जाके बात करती हूँ तो वो पहले सीरियसली नहीं लेते. तो फिर बिलीव वेबसाइट नहीं दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं हाँ. ये स्टोर है, अच्छा कहते हैं अच्छा ओ ठीक है अब आप एड्रेस कर सकते हैं. Helps you grow as a person as well. जब ये challenges face करते हो, you need to find a way to get around it. न्यू थिंग्स बहुत सारी चीजें हैं. अभी नेचर को बिल्कुल डिफरेंट कर रहे हैं. मतलब इसने तो कर लिया बट अभी मैं नहीं बोल पाती इतना डांट के या कुछ. So यही चीज थी like I come from an engineering background. I'm an electronics engineer. तो पहले जो मेरी रीडिंग होती थी that was all about electronics, diodes, transistors वगैरह पढ़ लिए. अब जब इंडस्ट्री में गए तो मुझे लगा यार ये चीज जरूरी है, बट वंस आई हैव द प्रोडक्ट आई नीड टू नो सेलिंग, आई नीड टू नो मार्केटिंग. नाउ आई रीड अबाउट थिंग्स लाइक इन्फ्लुएंस, यू नो, marketing, sales, business development. I read about things like persuasion. So बिल्कुल change हो जाता है trajectory, and you can see ये सब चीजें पढ़ने के बाद you can go back and you can see the change, and that's how you grow, that's how you develop a persona. Let's talk about the process of creating perfumes, and ये बहुत interesting है क्योंकि मुझे सोच कुछ idea है. I'm not sure if you guys have seen that वो reel है ना, उसमें दुबई में there is one person. Yusuf Bhai. He's from Kerala. So once you go there, you can like Yusuf Bhai मुझे ये वाला perfume चाहिए, and वो 5 मिनट में he gets the same perfume. And one good thing about this, he also replicate the perfume कि यार तुम 10,000 वाला perfume ले जाओ यूसुफ भाई पे, and वो बना देते हैं. So मुझे जानना है यूसुफ भाई करते क्या है. So tell me about that process, because I know about the perfume pyramid. एक base note होता है. Of course you have ethanol as your you know, that substrate, and then you have hot notes, then you have top notes. Talk us about the process कि कैसे बनता है एक perfume. अगर आपको वो जैसे प्रोसेस करते हैं तो क्या है कि अगर आप फ्रेग्रेंस डालोगे कोई भी तो फर्स्ट 20 मिनट्स आपको सिर्फ टॉप Fragrance comes from essential oils. या एसेंशियल ऑयल्स, और essential oils के sources कौन कौन से होते हैं? सब कुछ मतलब रो आप सारे फ्लोरल सारे हाँ, फ्रूट्स, plant. Citrus fruits हो गया, florals हो गया. And किसी के Synthetics animal होते हैं. wastes भी होते हैं जो हाँ, लगते हैं मतलब fragrances में. मतलब बहुत हाँ, डिफरेंट different चीजें रहती की हैं. वॉमिट से भी एक Yes. होता है व्हिच इज वेरी एक्सपेंसिव बाय द वे. Musk comes from deer. हाँ एग्जैक्टली. ऐसे तो ऐसे different बहुत सारी डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है. अब तो सिंथेटिकली भी बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर होने लग गई हैं जो रेप्लिकेट करती हैं ऐसे बहुत एक्सपेंसिव Fragrances को. का. बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट रोज का एसेंशियल ऑयल इट्स 72,000 पर केजी. Wow. तो इट्स लाइक वेरी एक्सपेंसिव जो नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स हैं. वी आल्सो यूज सम ऑफ देम बट हाँ ऑब्वियसली बहुत ड्रॉप्स डालते तो इतना पता नहीं चलता है. नाउ द थिंग इज अगर आप EDP ले रहे हैं फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट 20% concentration. So if 20% is your perfume oil concentration, the rest is ethanol. That is your solvent. अब इसके साथ फिक्सेटिव्स भी डालते हैं कुछ, टोलुइन एंड डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आर देयर जो फ्रेग्रेंस को होल्ड करके रखते हैं. और बेस नोट्स जो होते हैं वो भी उनका भी नेचुरल नेचर होता है. फॉर एग्जांपल व्हेन आई टॉक अबाउट मस्क, वो भी फ्रेग्रेंस को होल्ड करके रखता है. तो ये फिक्सेटिव्स होते हैं जो फ्रेग्रेंस को ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं फ्रेग्रेंस का. नाउ जो टॉप नोट्स होते हैं, व्हेनेवर यू आर स्प्रेइंग अ फ्रेग्रेंस, आपको जो फर्स्ट 20 मिनट्स फ्रेग्रेंस आ रही है ना, दैट इज जस्ट योर टॉप नोट्स. अब वो टॉप नोट्स, अब यूसुफ भाई ने क्या किया, वो फ्रेग्रेंस स्मेल करी, उनको जो सबसे ऊपर पता चल रहा है ना वो नोट्स आपको पता चल जाते हैं. आप फ्रेग्रेंस सूंघते हो, सुबह आपको समझ आ रहा क्या आ रहा है, आपको लाइम का फ्रेग्रेंस आ रहा है, आपको सिट्रसी आ रहा है, आपको एक्वा आ रहा है. तो ही इज लाइक, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना, मैंने सारे एसेंशियल ऑयल लिए और सबको सूंघ सूंघ के वो देखा कि क्या क्या खुशबू होती है इसकी. तो उन्होंने भी वही सब किया होगा. ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा है है, तो but हाँ, उनको we- सब बाय ऑल टिप्स होता है. बट जो डेवलप होता है ओवर द टाइम, ओवर फ्यू आवर्स, जो उसके हार्ट नोट्स आते हैं, जो उसके वो वाले नोट्स आते हैं, वो तो नहीं पता चलते होंगे फर्स्ट स्प्रे में. फर्स्ट में फर्स्ट डे में नहीं टाइम बता सकते लगता है. उसके 20 मिनट्स के बाद जो है फिर फ्रेग्रेंस टॉप नोट उड़ेगा, सेटल होगी, फिर आपको मिडिल नोट्स पता चलेंगे, फिर एंड में जाके आपको बेस नोट पता चलेंगे,
जो बिल्कुल रेसिड्यू बच जाता है आपके हाँ। कपड़ों पे, जब आप देखते हो एक मिडिल नोट से बाद- ज्यादा टाइम के लिए आपके उस पे Middle note रहेंगे, सबसे ज्यादा मतलब time पहले के टॉप लिए। नोट से तो उड़ ही जो ये जाता प्रोसेस है जिसमें हमने इथेनॉल लिया एज अ सॉल्वेंट, उसमें हमने फिर एसेंशियल ऑयल्स डाले, इज दिस द सेम प्रोसेस जो स्केलेबल है, जो फैक्ट्रीज में हो रहा है, वहाँ पे कुछ अलग कुछ यूज हो रहा है। नहीं, स्केलेबल नहीं है, वहाँ पे कुछ अलग होता है। है? ओके, तो बेसिकली जो असेंशियल ऑयल का कॉम्बिनेशन है वो ही बनने में बहुत बहुत टाइम टाइम लगता है, वो बहुत लगता है। अलग से बनता है। वो परफ्यूम में प्रॉपर हाँ, उसमें exactly. फॉर्मुलेशंस करेंगे, सब करेंगे, उसके बाद ही बनते हैं। सो दैट इज लाइक योर इंग्रेडिएंट टू मेक परफ्यूम, तो पहले आप लोग वो बनवाते हो। हाँ, हाँ, पहले वो तो बनता है। वॉक अस थ्रू द प्रोसेस। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा इनसिक्योरिटी होगी कि कॉपी ना हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं है। So walk us तो through the हमारी फॉर्मुलेशन हमारी खुद की खुद होती के है। होते हैं, हाँ। स्टार्टिंग में तो मैं खुद से बनाती थी, बट ऑब्वियसली वो हमने नहीं किया। हमने वी हैव अ परफ्यूमिस्ट जो वर्क करता है, खुद से फॉर्मुलेशंस बनाता है। ऑब्वियसली वी डू नो कि हमें कौन सा इंग्रेडिएंट चाहिए। अब हम लोग रोज फीडबैक लेते हैं कस्टमर से एग्जीबिशंस में जाके। नाउ आई नो कि कस्टमर को क्या चाहिए। कस्टमर को एक्वा चाहिए, सिट्रस कम चाहिए, मस्क ज्यादा चाहिए, डेटा कलेक्ट करते हैं। देन आई आस्क माय परफ्यूमिस्ट कि अच्छा ऐसा कुछ चाहिए। तो वो वेरिएशंस के साथ, वो हर चीज के साथ दे गिव अस अ फॉर्मूला। उसमें भी कितने फॉर्मूलाज रिजेक्ट होते हैं, कितने एक्सेप्ट होते हैं। उसके बाद फॉर मास प्रोडक्शन वी हैव लाइक अ कंपनी विच इज डूइंग इट फॉर अस, बिकॉज बहुत सारे लाइसेंसेज और वो सब चाहिए, एंड वो टाइम लगता है स्केल करने में उस लेवल तक। So the step one is you come up with the fragrance जो you think, जो notes हमें चाहिए, जो हमें लगता है कि बिकेगा। You come up with that, you sit with your perfumist, you give him some inputs कि यार ये वाला feedback customer से आया है, इसमें ये ज़्यादा चाहिए। You come up with a formula and then you take that formula to factories. Yeah. Okay. Basically third party, we have a third party for that. Right, जो बना के दे रहा है। हाँ, Factories में क्या होता है? Do you know any idea about that कि उसके पीछे? विजिट, एंड हमारे तो पेज पर भी हैं कुछ Okay. वीडियोस। तो बेसिकली जब आपका वो जो परफ्यूम ऑयल का कॉन्सेंट्रेशन आपका आ गया, देयर आर बिग मशीन्स एंड चोनर्स। तो आप एसेंशियल ऑयल्स डालते हो उसके अंदर, देयर आर फिक्सेटिव्स व्हिच होल्ड्स द फ्रेग्रेंस। देन उसका इथेनॉल होता है। इथेनॉल भी बहुत क्वालिटी का आता है। यू हैव टू बी मेक श्योर कि हम परफ्यूम ग्रेड बेस्ट इथेनॉल यूज करें। देन उसको मिक्स करते हैं। फिर फ्रेग्रेंस को एक मैचुरेशन का प्रोसेस होता है जो मिक्सिंग वाला होता है। फिर मेच्योरेशन का प्रोसेस होता है कि वो फ्रेग्रेंस 45 days मेच्योर में, होती है। 45 डेज तो मिनिमम मिनिमम है। उससे जितना ज्यादा ही टाइम। ज्यादा टाइम लगता है फ्रेग्रेंस को मैच्योर होने में। Maturity डायरेक्ट बॉटल में होती है या बॉटलिंग से पहले हो जाती है? नहीं, बॉटलिंग में होती है। बॉटलिंग के बाद। So at least you'd keep it for 45 days, जैसे हम उसको विस्की के लैंग्वेज में बोलते हैं एज करना। एज करने का ऐसे ही करते हैं। But you don't do it in barrels, you do it directly in the bottle. Bottle करने के बाद। इथेनॉल है ना, वो वो उड़ उड़ जाएगा। जाएगा अगर आप बॉटल नहीं करोगे। आप ऐसे खाली कंटेनर में नहीं कर सकते उसको। तो दैट इज द I think ये बहुत बड़ा मिथ भी है कई लोगों को कि परफ्यूम हैज एन इनफिनिट शेल्फ लाइफ, बट ऐसा ट्रू नहीं है, बिकॉज इथेनॉल यू नो इट इवेपोरेट्स। एग्जैक्टली। एंड फ्रेग्रेंस की नेचर भी चेंज हो जाती है, नेचर भी चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। टेम्परेचर, सनलाइट, सबके साथ फ्रेग्रेंस इंटरेक्ट करती है। तो वो चीजें चेंज होती रहती हैं। तो 3 years हमारी शेल्फ लाइफ रहती है। उसके बाद ये नहीं है फ्रेग्रेंस खराब हो जाती है। इस जस्ट दैट उसका नेचर जो बनाया Change था होता वो है। जस्टिफाइड नहीं रहता। Coming back to the process, so first thing you got the formula from your perfumist, you take that formula कि फैक्ट्री वाले अंकल को बोला अंकल प्लीज बना दो, नहीं तो पापा को बुला देंगे, प्लीज बना दो। then you get so many liters of perfume made for you, then it goes for bottling. या बॉटल भी हम लोग खुद से डिसाइड करते हैं, खुद से करते खुद हैं, हाँ। जाके खुद से। Bottling की अलग फैक्ट्री है। हाँ, हाँ, अलग फैक्ट्री है। अच्छा, तो वहां से वहां तक फिर ट्रांसपोर्ट होके जाता है पूरा परफ्यूम, एंड वहां जाके बॉटल होता है। हाँ, बॉटलिंग फैक्ट्रीज में बॉटल नहीं, bottles उस factory में आ जाती है। bottles बन के जहाँ ग्लास बनती फैक्ट्री कहीं में और है। बनती कहीं और Okay. है, वहां से आती है वापस। ओके। फिर पंप और कैप्स एंड सबका सब- इतना, मतलब इट्स लाइक द मोस्ट फन टास्क। आप सोचो आप अपने लिए कोई चीज जैसे बॉटल के मतलब वो ढूंढ रहे हो, कैप ढूंढ रहे हो, प्रोक्योर कर रहे हो। I see one of your fragrance. I have it over here, and I really like this bottle. This one is Crystal Noah. इसका magnetic enclosure है, and that's something that you guys have designed. So tell us about it कि क्या प्रोसेस होता है बॉटल बनाने में, because it's more like a product design process. Yeah, जो so- कि बिल्कुल अलग है परफ्यूम बनाने से। हाँ, तो ये तो हम खुद से करते हैं। Okay. दिस इज समथिंग विच मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहा है क्रिएटिव फील्ड में। मैं हमेशा हमारे इसमें एफ एक्टिविटी होती थी, मैं बहुत टाइम वही करती रहती थी। ये सब हम तो खुद से करते हैं। नाउ इसकी कैप कहीं और से प्रोक्योर हुई है, इसकी बॉटल कहीं और से प्रोक्योर हुई है, इसका Stickers. स्टिकर कहीं और से प्रोक्योर हुआ है। हम डिफरेंट स्टिकर्स ट्राई करते हैं कि बॉटल के ऊपर Bottle क्या क्या अच्छी suit लगेगी, करेगा। क्या नहीं अच्छी लगेगी। इसकी कोटिंग भी हुई है। It's like glass. ग्रेडियंट टाइप पूरा ऊपर से Yeah, black आ जाता है, exactly, नीचे exactly. gradient बन रहा है। तो इसमें भी हमें डिफरेंट कुछ में हम मैट कराते हैं, कुछ में डिफरेंट उसके साथ हम चेक ये करते सब हैं। इंडिया में बन रहा है? सब इंडिया में Yes. बनता है। Everything is in India. Made in India. हाँ, so the thing is that it's Made all in India. from fragrance to essential oils to bottle to glass, everything in शेर नहीं India. लगा रहा था मेक इन इंडिया वाला उसमें? लगाया? अभी तो नहीं लगाया हुआ है। So that is the thing.
तो ये बॉटल होकर आई, इसके बाद जैसे मैंने बताया था 80% पीपल दे हैव दिस ब्रांड आइडेंटिटी एंड पैकेजिंग. लेट्स टॉक अबाउट पैकेजिंग, बिकॉज ये वाला तो पूरा ही अलग हो गया ना परफ्यूम से. परफ्यूम बना दी, बट यू नीड टू क्रैक पैकेजिंग, यू नीड टू क्रैक बॉटलिंग, तभी वो बिकेगा. सो यू हैव प्रोडक्ट डिजाइनर्स फॉर इट, और यू गिव आइडियाज. We only do it, मतलब हम डिजाइन ढूंढ ढूंढ के उनको भेजते हैं कि आप ऐसा कुछ. ये हमारा आइडिया है. वी वांटेड ऐसे फॉर्मेट में देते कि बन जाए फैक्ट्री में जाके. नहीं हमारा Product बेसिकली design डिजाइनर है, ओके. इससे हम स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, Okay. सारे डिजाइन उसी से होते हैं. हाँ. तो अब इसमें तो हम लोग बेसिकली लग्जरी ब्रांड बहुत सारे देखते हैं, कुछ ना कुछ आइडियाज Research करते हैं proper, रिसर्च हाँ. करते हैं पूरा टाइम बैठकर. उसके बाद जो डिजाइन होते हैं हम अपने डिजाइनर को बोलते हैं हमें ऐसा कुछ चाहिए. देन वी मेक श्योर दैट वी यूज लग्जरी कलर्स. हमारा ब्रांड टोन है कि ब्लैक, व्हाइट, गोल्ड इज आर ब्लैक मतलब कलर टोन्स. इनिशियली कुछ नहीं पता था ये सब, धीरे धीरे रियलाइज किया ओ साइकोलॉजिकल कलर्स भी होते हैं लग्जरी के. ऐसे इतना मतलब फॉन्ट्स तक सेम रखने हैं, फॉन्ट्स कौन से यूज करने हैं, लग्जरी फॉन्ट्स कौन से होते हैं. इफ वी हैव टू डिपिक्ट अफोर्डेबल लग्जरी, सब कुछ लग्जरी होना चाहिए, बस प्राइस इज द प्राइस में अफोर्डेबल बनाना है उसको. तो वो सब चीजें धीरे धीरे सीखी. फर्स्ट बैच जो था, अभी हमारे पास पैकेजिंग शायद फर्स्ट वाली है नहीं, इफ यू गेट वेबसाइट, तो फर्स्ट वाली इतनी अच्छी नहीं थी, बट हमने उसको चेंज नहीं करा बिकॉज कस्टमर को रिपीट ऑर्डर है उसका. ओरिजिनल वन तो हम चाहते थे कि वो वैसे ही रहे, दैट्स द ओजी थिंग. अब जो सेकंड अब जो प्रीवियस second कलेक्शन आया है collection है, दैट इज मच एक बेटर. रेट्रो वाइब भी चाहिए होती है कि ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था, विल नॉट चेंज दैट. एंड वो उसके रिपीटेटिव ऑर्डर्स हैं तो कनेक्ट होता है, और वो भी मतलब बहुत अच्छी है वो. हम ऐसे नहीं बोलेंगे गंदी है, बट ये और बेटर है. मतलब वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम आवर पास्ट मिस्टेक्स. मिस्टेक्स. फर्स्ट उसमें था पैकेजिंग अच्छी नहीं है, पैकेजिंग अच्छी करी. सेकंड उसमें था थोड़ी फ्रेग्रेंस में स्मूथनेस और लानी है, तो जो हमने न्यू लॉन्च अभी आने वाला है, आई हैव बॉट वन बॉटल एज वेल, तो उसमें हमने स्मूथनेस इंक्रीज करी, फ्रेग्रेंस की, थोड़ा गर्ली बॉटल बनाई बिकॉज लड़कियों को वैसे पसंद है. हाँ, उसकी तो उसमें पैकेजिंग ऐसी लेकिन करी. हमारा फीडबैक इतना जल्दी आता है तो वी कैन इम्प्रूव. एंड हमारे पास सेकंड फीडबैक भी नहीं है कि अच्छा हाँ हमें कोई और ही आके बता रहा है. वी डायरेक्टली एंगेज विद आवर कस्टमर्स. इतने सारे कस्टमर्स जो हमें डायरेक्टली हैं, हाँ. रोज मिलते हैं, मतलब मिलते रहते हैं. वो स्टोर पे भी आके बोलते हैं कि अच्छा मैम कब आएंगी. दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव Interesting. डेवलप्ड. वी हैव मतलब आई फील इट्स लाइक अ कम्युनिटी दैट वी आर बिल्डिंग साइड बाय साइड. याशिका, यू आर स्टिल इन कॉलेज एंड मतलब मैं जब कॉलेज में था, आई रिमेंबर विविडली कि वी लॉट ऑफ पीपल मेक्स अ लॉट ऑफ मिस्टेक व्हेन इट कम्स टू परफ्यूम सिलेक्शन, परफ्यूम अप्लाइंग द परफ्यूम. सो अभी भी चल रहा है वो, लाइक भैया सीख गए हैं लड़के? अच्छा लड़के. What are some blunders that people make? And I know like smelling good is really important in today's time. So what are some blunders that people do? I have never smelled them. वैसे जाकर मुझे समझ नहीं करती तो आई चल जाता है. पता चल जाता है कोई अगर अच्छे से परफ्यूम लगा गया देन तो आई नो कि हाँ कौन ऐसे वाले नोट्स एक्वा लगा के आए तो ये लगा के कुछ वोट ही लगा वो लगा के तो ये मुझे सब कुछ समझ आता है. मैं लोगों को बोलती रहती हूँ तो कहते हैं चुप रहे यार कितना बोलेगी जा. तो मेरे को समझ आता है कि हाँ धीरे बोलो ट्रेन आ गई है. ठीक है कर सकती हूँ. तो वैसे वो मैं उनको बताती हूँ कि हाँ तूने ये लगाया. उनको समझ भी नहीं आता मैं जो उनको बोलती हूँ और फिर मैं उनको सैंपल लेके आती हूँ कि देख तूने ऐसा लगाया हमारे उसमें भी ये वाले ब्रांड में हमने करे. तो फिर उनको देख के अभी देखते होंगे कॉलेज में सब एज यू एज अ परफ्यूम एक्सपर्ट पूछते हैं आगे टिप्स वगैरह की. कुछ पूछते हैं कि हाँ कि कौन सा अब मैं कौन सा खरीदूं, मुझे ये नोट पसंद है. फिर मैं उनको बताती हूँ कि तो ये वाले ब्रांड का ये ले ले, ये अच्छा है ये अच्छा है. पर मैं उनको बोलती हूँ हाँ सेरोमा का भी लो पहले शुरू. टिकटॉक पे एक वाली बहुत फेमस हुई थी वीडियो जिसके अंदर यू फर्स्ट अप्लाई सम वैसलीन एंड देन यू हिट द तो उससे हाँ काम It helps, करता है. it it helps. helps, हाँ. बिकॉज वो फ्रेग्रेंस का जो होल्ड करता है ना, Hold, फ्रेग्रेंस को हाँ. होल्ड करके रखता है वो, इसीलिए. What are some blunders that people make when it comes to Oh my perfume? god, I'll tell you one. If I spray this fragrance and I do this, हाँ. आपके सारे टॉप notes चले गए. खराब हो गए. तो फ्रेग्रेंस का पूरा वो एसेंस ही खराब हो गया. तो दिस इज समथिंग जो मैं अपने स्टोर पे भी आके मैं कस्टमर को जो प्लीज ऐसे मत मत करो, करो. प्लीज मत करो, बिकॉज वो फ्रेग्रेंस की आपकी पूरी नेचर ही इतनी एंड एक बार में जज नहीं करना. जैसे ही वो स्मेल करते जैसे ही वो स्प्रे करो और एक बार में स्मेल करते उसमें पता ही नहीं चलता कि वो क्या है. उसमें अपना मतलब माइंडसेट नहीं बनाना चाहिए. उसको प्रॉपर उसको टाइम दो, उसको प्रॉपर स्मेल करो एंड उसके बाद समझो कि आपको वो पसंद आया कि नहीं आया. मतलब ऐसे भी फ्रेग्रेंस सेटल होगी Settle तब तो होगी, तभी तो पता चलेगा. कुछ पता चलेंगे. टॉप नोट्स में आपको क्या जज कर सकते हो आप. तो कभी कुछ लोग कहते हैं ना कि वहां सूंघा था तो अच्छा लग रहा था, घर आके अच्छा नहीं लग रहा. जैसे आपने टॉप नोट से जजमेंट बनाई, गिव इट 5 minutes, मेक योर जजमेंट अकॉर्डिंगली एंड देन परचेज. What else? Is there something like too much perfume? मतलब मेरे को पर्सनली तो आई फील देयर इज नथिंग लाइक टू मच परफ्यूम. हाँ. मेरे को तो जितना मर्जी मैं नहा के जाऊं परफ्यूम में, मुझे वो भी अच्छा लगता है. हमें पता भी नहीं But I चलता कि हम feel- इतना भी परफ्यूम लगा लें ऐसा कुछ नहीं बट है. आई फील दूसरे लोगों को शायद प्रॉब्लम होती होती होगी तो क्योंकि it's आती है like a वो. thing. Let's talk about distribution, क्योंकि you also mentioned in the beginning कि यार प्रोडक्ट तो बना लिया, अब बिकेगा कैसे ये समझ नहीं आ रहा. And that's why cracking distribution is really really important. So you guys are doing sales from your website, you have some online partners, you also have some stores.
Yeah, talk about all the distribution channels that you have and one or two things attached to that कि क्या सीखा. For example, if I give you an example कि एक हमारा distribution है from our website, उससे हमने ये दो चीजें सीखी, ये हमें उस पर improve करना है. एक हमारा distribution है in store, उससे हमने ये दो चीजें सीखी, उसमें हमने ये improve करना है. So talk about all the channels. So first of all, online straight away गए तो नहीं work किया. We thought, and then we started to figure out कि ऐसा क्यों हो रहा है. First of all, perfume is an experiential product. तो ऑनलाइन हमारे रिपीट ऑर्डर्स अच्छे आते हैं, बट फर्स्ट इन हैंड कस्टमर एक्विजिशन बहुत परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे पैसा हम नहीं खर्चना चाहते. वी डोंट वांट कि हमारा ब्रांड परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे बिल्ड हो. वी वांट हमारा ब्रांड एक कम्युनिटी के थ्रू बिल्ड हो, लोगों को पसंद आए, वर्ड ऑफ माउथ से ग्रो हो, लोग एक्सपीरियंस कर सके उस चीज को. सो दैट हैज बीन आवर मोटो फ्रॉम डे वन. तो हमने एक्सपीरियंस के लिए हमने सोचा कैसे करें. सबसे सस्ता जुगाड़ था. स्टार्टिंग में स्टोर्स तो नहीं खोल सकते थे, तो वी स्टार्टेड टेकिंग एग्जीबिशंस. बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा. वी हैव डन एग्जीबिशंस इन अशोक होटल, वी हैव डन एग्जीबिशंस इन सोसाइटीज, वी हैव डन एग्जीबिशंस इन मॉल्स के बाहर वाली फ्ली मार्केट. हमने कहा जितना experience हम दे सकते हैं, जितना हम कस्टमर से जुड़ सकते हैं, जितना हम फीडबैक ले सकते हैं. And we go there personally, and that's We the still way go we there. go. वेबसाइट पे ये भी है ना, यू जस्ट लॉन्च द वेबसाइट एंड किसी को पता ही नहीं है सिरोमा क्या है, क्या करता है, तो व्हाई वुड एनीवन बाय फ्रॉम यू. एंड एज यू मेंशन, ये एक्सपीरियंस प्रोडक्ट है. इट इज सो इंपॉर्टेंट, आई टेल यू, कि ऑलमोस्ट फ्रॉम लास्ट डेकेड सोनी इज ट्राइंग टू गिव दैट एक्सपीरियंस, क्योंकि हर सेंसेस जरूरी है. एंड व्हेन पीपल आर प्लेइंग गेम्स, दे आर इन्वॉल्वड विजुअली, दे आर इन्वॉल्वड विद देयर टच, बट वो स्मेल का वो देना चाह रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग, जिससे जो गेम के अंदर अगर कोई लेट्स से एक कुछ आया है, किसी ने परफ्यूम लगाया, वो भी उनको फील आए. सो दैट्स व्हाई दिस प्रोडक्ट इज दिस एक्सपीरियंशियल स्टोर इज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मैंने कई बार बेट लिया है. समटाइम्स आई जस्ट बॉट परफ्यूम ब्लाइंडली बिकॉज ऑफ द रिव्यूज दैट पीपल हैव, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी कि अगर मैं किसी को ट्रस्ट करता हूँ, अगर वो उसका अच्छा रिव्यू दे रहा है, सो आई विल बाय दैट. आई हैव टू से कि वो वर्क नहीं करता मोस्ट ऑफ द टाइम. Because everybody has a different choice. आपका different Yeah. होगा, It's तो a hit and a miss. What I'll rather do कि मैं मैंने किसी के घर पे कलेक्शन लिया, चेक कर लिया, या मैं उसको जाके ले लिया और ऑनलाइन जाके डिस्काउंट कोड लगा के ले लिया, हाँ. या फिर ड्यूटी फ्री से ले लिया. एग्जैक्टली. सो बेसिकली होता क्या है कि नोट्स भी जो आपको दिए हुए हैं, आपको पता नहीं चलता वो उसके अकॉर्ड कैसे बन के आएगी. आपको नहीं पता अगर थोड़ा सा भी ट्वीक कर दे फ्रेग्रेंस की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मैंने रोज का कम करके जास्मिन का ज्यादा दे दिया, फ्रेग्रेंस पूरी चेंज हो जाती है. तो आप वो नोट से भी नहीं जज कर सकते. एंड सेकेंडली, सबका टेस्ट बहुत डिफरेंट है. हाँ. अगर मुझे माइल्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद है और मुझे आप स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, किसी को ऑब्वियसली उसके लिए स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वर्क करती है, मेरे लिए नहीं करती है, तो रिव्यू से जज करना बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट, very subjective. वेरी सब्जेक्टिव. दिस फील्ड इज वेरी सब्जेक्टिव. दैट्स व्हाई वी हैव ट्राइड कि एक्सपीरियंस देंगे एंड उसी से हम ग्रो करेंगे. And Film channel हो गया, D2C from your website, then you have experiential store. What else? Then we exhibitions, and then we're listed on Amazon and Myntra. Myntra. उस पे कैसा रहता है सेल्स वगैरह? Amazon अभी पे repeated orders आते हैं. Repeat orders आते हैं. अच्छे आते हैं. Okay. नाउ अभी मिंत्रा पे तो हम लोग 2 months पहले लिस्ट हुए हैं, एंड हमें ना इवन पता था, लिस्टिंग भी खुद कर रहे थे, तो हमें पता था ये लिस्टिंग कैसे करनी होती है. फिर हमने बाहर से कराई एंड वी सॉ ह्यूज डिफरेंस जितने हमारे ऑर्डर्स आ रहे orders है Amazon पे, हमारे orders increase हुए. SEO and something, all these things Things are something work, जो हाँ. बहुत ज्यादा ध्यान से केयरफुली करनी चाहिए. करनी चाहिए. खुद से हर चीज भी नहीं करनी चाहिए. हाँ. For a young perfume company, what is like the pinnacle of distribution? I'll give you one example. जैसे विपुल है, उसका हो सकता है ये हो कि मेरा जो वॉलेट है वो विराट कोहली यूज करे. मेरे लिए हो सकता है ये हो कि मेरे वीडियो पे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है कमेंट करे. देन दैट विल बी द पिनाकल फॉर मी. व्हाट वुड बी द पिनाकल? अगर ये बॉटल कहाँ पड़ी हुई दिख जाएगी, यू विल से लाइक कि ठीक है यार, वी मेड इट एज अ सिरोमा ब्रांड. सेलिब्रिटी इज समथिंग जो सब लोग फॉलो करते Follow हैं. करते हैं. एंड अगर एक सेलिब्रिटी अगर कोई फ्रेग्रेंस यूज कर लेता है, सब लोग भाग लोग इतना हो जाते हैं कि मुझे यही चाहिए. जैसे आलिया भट्ट ने बोल दिया गुची Flora है, तो तो वो सब फेमस हो गया. Flora Gucci लोग Flora. यूज कर रहे हैं, बस उनको अच्छी लग रही है. शाहरुख खान की वैसे फेमस हुई. ऑथर्स के लिए ये होता है कि उनकी जो बुक्स है वो अगर एयरपोर्ट पे पड़ी हुई हो, दैट वुड बी द पिनाकल. एंड आई थिंक ड्यूटी फ्री इज आल्सो अनदर गुड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दैट perfume brands would love to have their products shelved on airport. But yeah, it's quite interesting. If I talk about marketing, that could be the pinnacle for a perfume brand. But for me personally, when I see more than 3 orders coming from the same person, I feel this is my pinnacle for the business. If I'm able, अगर कोई कस्टमर दोबारा आ रहा है रिपीट परचेज के लिए, that is something जिससे आपको मिल जाता है कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे होगे तभी आ रहा है. बिकॉज किसी से पैसे निकलवाने एक बार आप किसी को पागल बना के निकलवा सकते हो, लेकिन दूसरी तीसरी बार आप नहीं निकलवा सकते. Talking about that, what do you think Indian consumers really want when it comes to perfumes? I feel the long lasting part. Secondly, fragrances can affordable. What's the definition of affordable here? Depends. Depends, सबका आपकी salary affordable हाँ, different होता है. different होता है. ठीक है, so let's talk about your range. Like, what is your affordable luxury range? ये affordable luxury में आता है?
Yeah. How much this bottle cost for? The MRP MRP is is 2500, but after discounts and everything 1800, 1750 something, which is हम लोग सेल करते हैं इसको. अगर आप वैसे देखोगे हमारी रेंज जो है वो स्टार्ट हो जाती है 500 से. It's like a tester set. आप अगर ऑनलाइन आपको खरीदना है आप वो टेस्टर सेट Tester set खरीदो खरीदो. and then you can purchase the bigger bottle later. Bigger bottles में भी इस 100 ml हमारा स्टार्ट हो जाता है 1100 से and it goes till 2600 after discount. After discount. The MRPs are 1600 to 3600, 3400. But the only thing is, if you compare this with any other brand in the Indian market, तो वो सब इस पैकेज ऐसी इस पैकेजिंग नहीं रेंज होगी, में हाँ. इतनी कंसंट्रेशन नहीं होगी. एंड अगर कुछ ब्रांड्स हैं जिनकी अच्छी पैकेजिंग वगैरह है भी, तो दे आर गिविंग 50% in 50 ml in this 50 ml इसको हाँ. So this is something that we are trying to capture. And we are giving 100 ml उसी प्राइस में. हाँ, we are giving 100 ml. It's उससे like कम twice प्राइस में the बेसिकली हाँ. quantity. And even ऐसे वहाँ bottle is better and packaging is better. मतलब ऐसे मैं compare नहीं कर रही but हाँ हमने We're जितना वो कर रहे हैं trying हाँ. to, you know, better Right. everything. So one is long lasting. I can definitely assure you that is very important for Indian consumer. मेरे को चाहिए होता है कि क्योंकि अगर मैं सुबह जा रहा हूँ, मैं रात को घर जा रहा हूँ, मुझे परफ्यूम कैरी नहीं करना. सुबह लगा लिया, एटलीस्ट कम से कम 7-8 घंटे चले एटलीस्ट. दूसरा प्राइसिंग आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन योर टारगेट ऑडियंस, whom you are building for. So other than that, you mentioned packaging. Yes, कुछ होते हैं डब्बे जिनको संभालने का मन करता है ना, कोई यूज नहीं है बट तब भी पड़ा रहे. हाँ. हमारे तो रिश्तेदारों के घर में मैं जाती हूँ ना, वो उसमें ज्वेलरी वगैरह रखते हैं, ठीक है, अच्छा है, कुछ तो यूज हो रहा है. मतलब टॉकिंग अबाउट टेस्टर, मेरे को ऐसा लगता है कि वो ना एक बेट है. आई गिव यू वन एग्जांपल, आई विल नॉट नेम द कंपनी, बट उन्होंने ना टेस्टर बनाए अच्छे. आई थिंक 30 ml के टेस्टर बनाए. मुझे अच्छा लगा. मैं उनका बड़ा परफ्यूम लेता ही नहीं हूँ क्योंकि 30 ml मैं कैरी कर लेता हूँ. मैं कहा यार ये कैरी करने में ईजी है. सो वन थिंग दैट आई एज एन इंडियन कंज्यूमर कैन टेल यू इज दिस इज रियली नाइस बॉटल. बट अगर ये छोटी होती ना, मैं कैरी कर सकता, मैं दोनों ले लेता. मैं वो भी ले लेता कि छोटी वाली बॉटल मैंने अपने साथ रख ली. हम लॉन्च कर रहे 20 हैं launch कर रहे हैं इसी very वीक में soon. या इसी नेक्स्ट वीक में. आई नो वो दिमाग में रहता होगा कि यार 20 ही लेंगे सब, उसके बाद बड़ी नहीं लेंगे. बट आई स्टिल थिंक कि मैं बड़ी घर पे और 4 है तो हाँ. जिसको जो अच्छी लगे उसके बाद वो बड़ी ले सके Exactly. कैरी करने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, हर चीज मैंने उसको बड़ा नहीं लिया, बट आई वोंट माइंड कीपिंग दैट. बट वो बहुत इजी हो जाता है कैरी करने में. स्पेशली माय वाइफ, शी कैरीज अ वेरी स्मॉल स्लिंग बैग. उसको चाहिए बस मेरा एक परफ्यूम आ जाए और एक मेरा फोन आ जाए. दैट्स गुड इनफ. और टॉकिंग अबाउट ब्रांड्स, आई हैव समथिंग दैट आई सेट हियर फॉर अस. सो मैं क्या करूंगा, मैं ना ब्लाइंड आई हैव दिस परफ्यूम्स ओवर हियर, लॉट ऑफ कलेक्शंस. मेरे खुद के कलेक्शन से भी खुद है, कुछ है, कुछ अलग है. सो आई विल स्प्रे ऑन द स्ट्रिप्स एंड आई विल गिव यू एंड यू हैव टू रेट इट इंडिविजुअली विदाउट शोइंग ईच अदर. और एक रेटिंग मैं दूंगा, ठीक है, जो मेरे को ओवर द टाइम मुझे लगता है कि मैंने इसको रेटिंग दी यूज करके. सो विल सी कि कौन सा कैसे वर्क करता है. सो दिस इज दैट यू कैन यूज टू गिव योर नंबर आउट ऑफ 10. ठीक है, टेक दिस. It looks like a fun activity. या इट्स अ रियली फन एक्टिविटी. देखते हैं क्या? कैसे कैसे रेट करते हैं इसको. ठीक है सबका डिफरेंट होगा बहुत. Obviously, सबकी क्योंकि जो है सबका ही सबका personal डिफरेंट बहुत वो है. Yeah, that is the beauty of this thing, right? So without showing you the bottle, I'll just spray. ओ यूसुफ भाई से जब मैंने भी बोला था ना, हमें एक बहुत फायदा होता है यूसुफ भाई से. हाँ. और ये एक रील है जिसमें ना वो ऐसे शेक करके दिखाते हैं कि Right. कंसंट्रेशन ज्यादा है. मैं तो हर कस्टमर को बोलती हूँ आप शेक करके देख लो. इतना फायदा हुआ है ना हमारी हाँ, sales और बढ़ गई उनको है समझ उसकी आता है वजह उसके से. बाद. Oh, this is nice. This is citrus. थोड़ा सा mask in the bottom. थोड़ा aqua notes. मेरा personal favorite है aqua. Would you say this is a summer fragrance? This is Summer, summer summer, fragrance. summer. Right. Definitely summer. Okay, rated out of 10. Want to guess? सेम करे. Oh, Want to make a guess? कौन सा है ये? This is the one by Calvin See, Klein. अच्छा. I have given it 6.5. और उसका रीजन ये I have a better summer fragrance which I prefer. But yeah, this is a really good one. You can try our lagoon. Marketing. Use that too, right? Okay, ready for the next one? Crystal Noir is also हाँ, summer fragrance. हाँ. This is a new launch. You should be shameless about marketing. Exactly. दोनों सेम है. थोड़ा स्पाइस नोट, थोड़ा स्वीट है. थोड़ा फूडी भी है. नाइट टाइम के लिए बहुत अच्छा है. So this is another, I think, an Indian brand. This is Body Cupid. Oh, I have given it 7. I have given 6. Again, 7.5. 7 I have given it just for the bottle. ये वही वाला है जिसका मैं बड़ा नहीं खरीदता. बट ये कभी जाओ ना, when we went for the cocktails, तब मैंने ये वाला साथ लेकर आया था. So I really enjoy this one.
And this seems to be a really fun activity to do. ये हमें करना चाहिए often. Okay, let's try another one. अगेन सिट्रस एक्वा, बट ये बहुत कॉमन है, Okay. बहुत कॉमन है. ये मैंने कहीं स्मेल करा हुआ है. Do you want to make a guess? This is Bella Vita style. This is my rating. इसके I don't think so last week करते हैं maybe या नहीं, मैंने कहा ये बहुत कॉमन हाँ फ्रेग्रेंस ये मैंने उनके स्टोर पे जाके वो करा था. हम उनको चेक करने गए थे कि कैसा कैसा उनका वो करता है. Do you want to have the coffee beans? Yeah. But You you know know not what? aqua This is the properly difference. aqua नहीं था. Yeah. अगर आपको फ्रेग्रेंस जेन्युइनली हटानी है ना, तो ये क्या करती है, आपकी नोट्स, ये इससे फायदा नहीं होता. Okay. ऑलवेज स्मेल योर स्किन. वो ज्यादा बेटर इफेक्ट करती है. परफ्यूम नहीं लगाया वो वाला पार्ट है ऐसे का. दिस इज नाइस. ये क्रिस्टल ऑरेंज लग रहा है. ये हमारे फ्रेग्रेंस जैसा लग रहा हाँ ये है. हमारे फ्रेग्रेंस क्रिस्टल नोयर जैसा लग रहा है बहुत ज्यादा. I like this one. हाँ, दिस इज तभी we did. दिस इज अ नाइस समर फ्रेग्रेंस. Yeah, this is Seroma. Right. ये नाम बचाना होता ना, तो ये podcast line में होता. I've given it 7.5. ओह नहीं, We are giving give it 9. 9. क्योंकि हमने इसको लॉन्च करा है. It's not a niche perfumery, but हाँ अच्छा है. It's very good for no. ये मुझे 212 जैसा क्यों लग रहा है? इसमें कोई घर के स्पाइसेस जैसा टेस्ट है जैसे किचन में जो होता है. अब आ रहा होगा सिनेमन या कुछ होगा. हाँ इसे मुझे नहीं पता बट कुछ है. है स्पाइसी फ्रेग्रेंस है. स्पाइसी है बट कुछ किचन वाले थोड़ा जो citrus मसाले वाला note है. प्रॉपर है. I guess cinnamon, yeah. I'm not personally fond of these हाँ. fragrances. बहुत niche में जाती है. Niche बहुत है, लोगों को हाँ. पसंद आता है नाइट विंटर के लिए. पर्सनली मुझे नहीं पसंद. मतलब मेरे को मैं यूज करती हूँ. I've given 5. I've given it 8. Like I like sometimes बहुत niche fragrance है. This is Victor and Rolf Spice Bomb. Very mature and very spicy. This one is also. If you want to try something like that, and if you like sweet and spice, there is a fragrance known as Portrait of a Lady, which is very niche, and I love it for night. Okay, I'll give you another one. अलग जगह ना try our possession वो भी बहुत niche है ऐसे बहुत वो है. And even Nice. Evoke. Evoke, Evoke you can is try also- Evoke. Evoke I is have Evoke. something अच्छा. Okay, वो नहीं दिखाऊंगा बड़ा. good, better in the spicy tones. अभी ना 2 मिनट बाद पता चलता है फ्रेग्रेंस Right, का. वो right, एकदम से पता नहीं चलता है. ये भी मुझे स्मेल करी लग रही है. हाँ करी हुई है. थोड़ी स्वीट में है. स्वीट बहुत कम है, स्पाइस ज्यादा है. स्वीट एंड स्पाइस का कॉम्बिनेशन है. अब शायद टॉप नोट्स पे सेटल हो. स्वीट एंड स्पाइस का कॉम्बिनेशन है देख. हाँ, बेस ना? नोट्स में है. अच्छी है मुझे अच्छी लगी पर्सनली. This is nice. This is niche. Female ये बहुत fragrance strong है. भी नहीं है. This is one of my go-to. This is This nice. is I'll give it 7.5 Paco Rabanne. This is Paco Rabanne, one of my go-to. This is This is nice. nice in the niche category. Yeah. हाँ. This is not वो, because कभी कभी niche में जाते हैं ना स्पाइस में, तो वो हिट करने लगता है हेड को. Exactly. ये वैसा नहीं. वैसा हिट नहीं कर रहा. हाँ. So what makes a niche fragrance? बहुत ही Ingredients. पर्टिकुलर. I always जो feel बहुत जब ही- भी strong ingredients आते हैं, जब भी स्पाइस थोड़ा आ जाता है, warmth आ जाती है, पचूली आ जाता है, जितना एक्सपेंसिव जाता है ना, उतना नहीं. ऐसे Woody, एम्बर आ गया, amber, हाँ. वुडी आ गया, Hmm. एम्बर ग्रेस हो गया. मस्त तो कॉमन हो गया यार. पहले मस्त भी फ्रेंच परफ्यूमरी में ऐसा होता था कि वो सेक्सीनेस इफेक्ट के लिए होता था, तो बहुत कॉमन हो गया. ये वो क्रिस्टियानो वाली है. दिखा. इसमें इलायची, सिनेमन, थोड़ा स्वीट. दिस इज अ वेरी गुड niche fragrance. I would rate it 10. Again, I like that.
Yeah, this is something that I never let out of stock. This is Narciso de Rodriguez. This one is the EDD version. पता नहीं इसका EDP अच्छा नहीं लगता मेरे को for some reason और very It lovely. is very packaging. This nice. is very Night nice. time I मतलब like this is it. something Yeah. जो niche में बहुत I just wish कि it last longer. इसका EDP भी आता है, परफ्यूम भी आता है. दोनों ही मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है. I वो don't know why. strong हो जाता होगा ना Strong बहुत अगर ज्यादा तो उसका फिर वो concentration आगे- बढ़ Yeah, this is like the most there's जो बिकता है सबसे ज्यादा. Okay, let me show you something different now. This is too sweet for me. It's a men's fragrance or it's unisex one. It's men. Then it's too sweet. I would not keep it in my palette for a men fragrance. I would keep it in a unisex palette tone. Is it from Zara? क्योंकि मैंने Zara में इसी वो करी है. Zara makes dupes ना, तो हो सकता है कि किसी बड़े ब्रांड का कोई Zara का होगा. How would you rate it? I liked it. I don't like it. मतलब depends. अगर मेरे को unisex में जाना है तो ठीक है. Okay. But I अगर will मुझे give a men's 8. collection के लिए देनी है, I would not give Okay. it a preference. 6, I guess. I've given it 5. And this one is another Indian company. It's a niche Milky Way. Oh. अच्छा. I've heard about this brand, but I've never हाँ. tried it. Okay, let's go to some different fragrances. Let me show you this one. This one has a funny story attached to it. अभी अपने job role switch कर लिया. I'm making you try the perfumes. This is nice. This is not very strong, not very mild. Citrus, woody. I tell मतलब थोड़ा settle होने के बाद ऐसे top note से जज करना is very difficult. थोड़ा woody and थोड़ा सा ऊद का भी आ रहा है हल्का सा. हाँ अभी वो तो बेस नोट होगा ना तो फिर वो पता नहीं बहुत चलेगा वो कम है, 10 मिनट but बाद ढंग से बज हाँ, रहा है. maybe है. बेस नोट में है ना वो. शायद, हाँ है. शायद. मतलब ऐसा लग रहा है. अच्छी Ten है minutes but बाद night ऐसा time लग है ये भी. 7.5. I've given it 7 as well. और ये कोई brand नहीं है. This is made by one of the perfumer in Australia. So I got it made from him. It's not a brand, but काफी अच्छा है ये. अच्छा है. Another one of my favorite. ये शायद women category में है, but I still keep it with me. You do You have all the nighttime fragrances वैसे भी. हाँ, I you feel- don't like aqua, vanilla, citrus. अच्छा. This is very sweet. This is like I feel like Yeah. eating this. This is nice. It's a This one has fetched me a lot of compliments. This one. Even though this is a lady's perfume. it's like a chewing gum. Yeah, bubblegum notes. Bubblegum notes. It's like wow. This is nice. I couldn't find इसकी same bottle फिर से. मैंने बहुत ढूंढी नहीं मिली. थोड़ा सा रोज के भी notes है पर. फ्लोरल बहुत कम है. Chewing Bubble gum gum वाले bubble notes gum वाले हैं बहुत but ज्यादा इसमें है. रोज है. एक बार इसको दोबारा स्मेल करें. इसमें एंड में रोज का वो आएगा. है ना? थोड़ा वाटरमेलन का है. मुझे रोज का थोड़ा लगा. मस्कमेलन का भी है. I liked it तो 8.5. I have given it 8 क्योंकि इसने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे लाके दिए हैं एंड इसको मैंने रैंडमली डिस्कवर किया था इन वन ऑफ द दुबई मार्केट. इट्स कॉल्ड वाइट ऑर्चिड. वाइट ऑर्किड EDP है ये. अच्छा ये वाला तो जानना है इसका कैसे. I just can't feel मतलब I just can't stop smelling it. मुझे इतनी अच्छी लग रही है. And this is a very very long lasting one. ये वो शायद इसमें धोने पड़ जाते हैं ना कपड़े. हाँ. दो धोने के बाद निकलते हैं वैसा. बचपन में बूमरैंग आती थी ना. हाँ, वैसी वैसी smell आती है. Maybe it's the nostalgia that's why we're liking it. Yeah. It's niche. It's nice. Nighttime. I've been using it wrong. This is citrus. Oh, this is citrus and woody का combination. Yeah. We have something similar. Intrigue. I know which one you're talking about. मैंने वो पकड़ लिया था जब when I was visiting your store. Yeah, very close to this one. Very close to Very this, close. right? This is nice. This is personal Zesty, palette. zesty Zesty है, orange. वही lime, Yeah, lime. bergamot. This is nice. I like it.
But this is a daytime fragrance. It's not Yeah. a nighttime. No, I this use is it in a daytime. it is a daytime fragrance. This This is is my something It's daytime summer citrus, fragrance. little fresh and थोड़ा सा उसमें फ्रेश नहीं है, Rated? बहुत फ्रेश नहीं है बट डे टाइम Citrus है, मैं पार्टी fresh में नहीं नहीं है। लगाऊंगी इतना इसको. सब्जेक्टिव होता है परफ्यूम. हाँ, मतलब मैं How would you rate it? 8 I like it. because हमारी palette 7. में है ना 7. सिर्फ Seven, उसकी palette seven. So like cost right. अच्छा. द ओनली थिंग इज मेरे को इतने माइल्ड फ्रेग्रेंसेस दिन में पसंद है, मुझे थोड़ा हाँ. सा भी थोड़ा स्ट्रांग होता है मेरे को नाइट Hmm. चले जाते नहीं हैं. बट दिस इज Lemony. समथिंग जो ऑफिस गोइंग एंड मतलब फ्रेश किया पूरा दिन फ्रेश रहो एवरीडे यूज के लिए आई वुड से. Another one of my favorite. This one was gifted Do you like to me. stronger fragrances? I हाँ. like milder fragrances. आई प्रेफर मेंस फ्रेग्रेंसेस तो वो मैं फ्रेग्रेंस ही लगा तो मुझे अच्छी लगी बहुत स्ट्रांग. दिस इज नाइस. इसके बाद एक दो और करेंगे. दिस इज स्वीट का परफेक्टली स्वीट. एक सेकंड, एक बार टू स्मेल कर, मुझे मिडिल नोट स्मेल करने हैं. इसके टॉप नोट ठीक था पर एकदम से जैसे वॉलेटाइल हुआ मुझे थोड़ा थोड़ी साबुन जैसी वो आ रही है इसमें. सोफी ये फिर खराब हो गया हो सकता है. दिखाइएगा. ओ सॉरी एक सेकंड. 2 मिनट बाद से व्हेन यू वॉश योर हैंड्स जैसे जो फ्लोरल वाले उससे होते हैं ना तो ऐसी आती है. एक इंग्रेडिएंट है जो बहुत प्रोमिनेंट है, जो बहुत नॉस्टैल्जिक है. I like how she goes deep into this. कोई तो ऐसे स्वीट फ्लोरल इंग्रेडिएंट है इसके हाँ, अंदर. वही ये सोप जैसी जैसे जो लक्स जो Lux का का- देखा लक्स वाला ना वही है. इसमें वायलेट लीफ है. Try rating it. इसमें वायलेट लीफ है. वो वो इंग्रेडिएंट है जो लगता है वो 7 I जो would say. पर्पल वाला बॉडी pink वॉश वाला नहीं आता वो है. हाँ इसकी बॉटल ही पर्पल इसमें है. जैस्मिन. सी वायलेट लीफ होगा इसके अंदर. This one I am rating 6. This one is like cost again. This one was gifted. आई एम रेटिंग to me. 7. 7. दिस इज कॉफी वनीला This is हमारा. one of my favorite, recent favorite. इट्स समथिंग सिमिलर टू मैजेस्टिक डस्क. सिम वही लग रहा है मुझे तो. देखियो दिस इज Majestic Dusk. One of my recent favorite. Coffee and vanilla. Is it Majestic Dusk. Ireland? Is it Ireland? This is Majestic Dusk. This is Majestic Dusk. 10 out of 10. Guys, please try Majestic Dusk. सबका favorite. Shout out. Majestic मतलब Dusk. we are out of stock for हाँ. this one. इसके इतने इसके कम बहुत अच्छे. अच्छे. 2 महीने के अंदर we are stock out for Yeah. this one. Best We launched it in recent. October and उसके बाद अभी this Jan and we are almost out of stock. Tell me about it. इसमें like okay, let's break this down. Majestic Dusk. How do you come up with the concept? इसके बारे में बताओ. Let's talk about it. I'll tell कि हम जहाँ आते थे ना तो जब वो कॉफी बीन्स बन गए थे कहते थे इसकी जैसी फ्रेग्रेंस दिखाओ कॉफी. मैंने कहा हमारे पास नहीं है तो हमें तब लगा कि अगर जब सब लोग ऐसी फ्रेग्रेंस वाले देन वी थिंक कि हम ऐसा ही क्यों नहीं कुछ लॉन्च करते. एंड देन And I हमारा love आइडिया that आया. segment. So मैं coffee And- brew करता हूँ. I just हाँ. take some time to just digest And that. now the thing is, कॉफी थोड़ी ना थोड़ा peculiar टेस्ट होता है, हाँ. स्ट्रांग होती है थोड़ी और peculiar होती है. अब वैसा आप स्मेल नहीं करना चाहोगे तो हमने थोड़ा वनीला डाला. थोड़ा vanilla डाला कि अच्छा, स्वीट हाँ. बनाया Right. और it's doing wonders. मतलब This is one of our best sellers. This हाँ. is the one that I recently recommended on one of my video. It's coming out soon. But yeah, nice. this is Thank you. something that this is something that I will. It's a unisex हाँ, it's a unisex fragrance. Night time के लिए perfect. और तुम लोग पहचान गए मतलब that you guys are not faking it, so it's really good. And let's move ahead. Talk to me about some emerging trends in this industry. मैं recently देख रहा था. I was talking to ChatGPT and I was putting out all my curiosity and I came to know that people are using AI to design perfumes. So ऐसे कुछ emerging trends के बारे में सुना है कुछ? Yeah, मेरे को हमने AI भी का- Yeah, people are using AI to come up with new perfume designs and things like that, and generative AI use कर रहे हैं packaging वगैरह design करने के लिए. ऐसा कुछ और emerging trends के बारे में सुना है या something that you're For looking forward to? packaging भी मतलब for carry bag we did this but अभी हमने उसको लॉन्च किया कि हमें अच्छा नहीं लगा वो डिजाइन. So we ChatGPT मतलब मैंने एक वो था कोई AI app जो का- AI something कुछ something, था, हाँ. तो मेरे को भी न्यू पैकेजिंग डिसाइड करनी थी बैग की. मैंने कहा कौन इतने सारे देखेगा, मैंने करवाया. बट आई फील जो हम खुद ढूंढ के करते हैं 10 चीजें देख के वो डिजाइन वो नहीं था. मतलब मे बी सबका डिफरेंट चॉइस डिफरेंट प्रेफरेंस हो सकती है बट अभी क्या चल रहा है, क्या नया आ रहा है इस इंडस्ट्री में? तो हमेशा ट्रेंड्स चेंज होते हाँ. रहते हैं. नाउ अगर मैं 6 years पहले की बात करूं, उस टाइम पचूली फ्रेग्रेंसेस बहुत ज्यादा इन थी. फिर ऊद आया. अब आई फील थोड़ी लाइटर फ्रेग्रेंसेस आएंगी क्योंकि हर बार चेंज हो जाता है. बट अगेन अभी तक ऊद ही चल रहा ऊद ही चल रहा है. है अभी मतलब. ऊद चेंज ही नहीं हुआ है. मतलब ट्रेंड वैसे 6 साल का था बट आई गेस 10 years तो खिंच चुका है ऊद. एंड हाँ. अभी भी आप देखोगे People are loving oud अभी भी. पर्सन इज लविंग ऊद. ऊद के डिफरेंट कॉम्बिनेशन जरूर आ गए हैं. Do you think it's marketing more than the product value?
Because I keep oud in a very middle pedestal. मैं उसको इतना I don't think it's a very or at least it doesn't work for me that great. I like it, but I don't love it. But some Same, people same. love it क्योंकि maybe दुबई के नाम से बहुत लोग खरीद लेते दुबई हैं के नाम दुबई से के नाम से marketing दुबई में है इतना इतना वो दूर लग रहा है कि अच्छा दुबई से हाँ ठीक है अभी हमें दे दो Yeah. Like in my circle, people are now started using Tom Ford ka wood oud, and oud is also like a byproduct of some wood, right? So wood oud. मेरे को ऐसा लगता है कि this has a lot to do with the marketing. इतना oud कर दिया है. So what are your some of interesting notes or some ingredients that you guys prefer? I love vanilla. I love coffee, and then I love juniper berry. Juniper. Yeah, so it's मतलब अभी न्यू फ्रेग्रेंस है उसका juniper berry का नोट है and I just love it. मैं इतनी obsessed हो Are you a gin drinker? गई sorry Gin drinker. no Okay, because उसमें होती है I'm gin is made of juniper, and I love gin smell. हाँ so मतलब we haven't smelled it but हाँ मतलब ऐसे नहीं पता मुझे हाँ. मतलब इंग्रेडिएंट के हिसाब से जो फ्रेग्रेंस है उसके लिए और मैं पिछले 1 महीने से वही फ्रेग्रेंस यूज कर रही हूँ मुझे इतनी ज्यादा हाँ. अच्छी लगी है मेरे पास इतनी Same, फ्रेग्रेंसेस मुझे वो है अच्छी लग रही है बल्कि मेरे को थोड़ा होता है कि मैं मेल डोमिनेंट फ्रेग्रेंस ज्यादा लगाती हूँ बट even I am liking that बहुत अच्छी What are some of the fragrances that have fetched you like most of the compliments? Majestic Dusk Manisha does even Noir Enigma and the one which we are launching now उसका नेम भी हाँ. बोल देते हैं तब तक तो हम कर ही देंगे लॉन्च हाँ so the name is Giverny Giverny. which we are launching and वो हमने अभी अपने क्लोज रिलेटिव्स और उनको हम दे रहे हैं फर्स्ट क्या ट्राई करो हाँ ट्राई करो जहाँ and हमने अपने label स्टोर से भी वगैरह रखा है हम दिए। लोगों को स्पेल कराते हैं कि आप अपना ओपिनियन Review दो दो, एंड लोग कह रहे हैं कि हम नंबर दिखलाते हैं कि आप ना हम जैसे ही लॉन्च होगा आप हमें कॉल कर देना तो ये हमें ये फ्रेग्रेंस फ्रेग्रेंस चाहिए बट हम उनको कहते हैं हमें लॉन्च नहीं करा ऐसा What are the notes in that one? Juniper berry Perfect. बिकॉज वो इतना सटल होता है हाँ. एंड इतना मतलब इट्स अ वेरी सेक्सी फ्रेग्रेंस एंड उससे ना फ्रेग्रेंस के अंदर एक 3D इफेक्ट एक oomph इफेक्ट कहते हैं इट्स वेरी स्मूथ आल्सो ऐसे मतलब बहुत इट्स वेरी ही स्मूथ आल्सो द इंग्रेडिएंट इज जो इंग्रेडिएंट की क्वालिटीज होती है मतलब फ्रेग्रेंस आपकी इंग्रेडिएंट की क्वालिटीज पर डिपेंड करता है तो आई जस्ट लव इट हमारा इससे पहले जूनिपर बेरी किसी में भी नहीं था न्यू लॉन्च में आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ दिस Right. इंग्रेडिएंट फ्रॉम द स्टार्ट बट अगेन थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था कैसे अकॉर्ड बनना है बट दिस टाइम वी लॉन्चिंग इट I think craft gin is very close to like making perfumes. क्योंकि craft gin में भी there is a lot of juniper berries, and then every gin is differentiated by the botanicals they have. So some like to put long, some like to put some other botanicals, and that's how they make it. And juniper definitely have a very distinct fragrance, and I couldn't remember any brand, especially in India, anyone is doing juniper. So I'm really looking forward to that. But on that note, there is something that a lot of people understand कि perfume ना हर किसी के skin पे अलग work करती है. You can have that in the strip, but once you put it on your skin, it will behave differently. Yeah, depending on your freons, your skin type, things like that. So as a man, as a woman, how should I go about choosing a perfume for my style, for my क्या चीजें मुझे ध्यान में रखनी चाहिए when I'm going out perfume shopping? See, if you sweat a lot, तो you should go for something very strong, ज़्यादा मतलब जिसके strong ingredients हो, woody हो, oud हो, जो strong में आए क्योंकि आप जब sweat करोगे तो obviously उसकी धीरे धीरे वो मतलब वो हो जाता है मतलब fade off हो जाता है like woody and woody? Then you should- अप्लाई इट ऑन योर क्लोथ्स हाँ बिकॉज अगर आप अपने That's the पास best thing, पॉइंट्स हाँ. पे वो करते हो यूज कर रहे हो And तो you आपकी sweat a lot. प्रोजेक्शन अच्छी आएगी Is it a good practice to use perfume on the clothes rather Yeah, than skin? yeah. इट्स द सेम थिंग मतलब ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे हम्म. आई फील कपड़ों से लास्टिंग अच्छी आती है स्किन से प्रोजेक्शन अच्छी आती ज़्यादा है अच्छी आती तो मैं है दोनों जगह लगाती हूँ हम्म. बट अगर जो लोग स्वेट ज्यादा करते हैं अगर हम लोग हम्म. उनको वैसे भी मिलते तो आई ऑलवेज से कि अप्लाई इट ऑन योर क्लोथ Clothes. बिकॉज आप कुछ भी कर लो अगर आपको इंसान बहुत स्वेट करता है वो फ्रेग्रेंस नहीं टिकेगी हम्म. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बॉडी Body type है तो बॉडी हीट से ही वो इवेपोरेट करता है Let's say someone walks into your booth and you have given them a bottle of your perfume to try. The way that they try the perfume, उससे कैसे you judge कि ये बंदा इसको पता है what he is doing and this is a noob, he's trying to act cool but he doesn't know. So This happens a lot. फर्स्ट ऑफ ऑल ये I'm करने sure. वाला ये चीज ये वाला एंड कुछ भी बोलना कि नहीं ये तो मैंने सूंघी हुई ये मैंने स्मेल करी हुई ये वाली ना ये वाली अरे नहीं ये तो इतनी अच्छी नहीं मतलब कुछ भी बोलना मतलब मतलब वो नहीं आएगा मतलब नोट्स भी नहीं पता कौन से नोट्स है क्या है एंड वो मुझसे लड़ते रहेंगे उस चीज पे कि नहीं ये तो यही है मैंने कहा सर मैंने बनवाई है मुझे पता तो होगा तो perfume etiquettes क्या होते हैं? Like if I walk into a perfume boutique, how should I try a perfume? ऑलवेज I look, you know that I know my shit. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई हैव अ स्ट्रिप अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा है तो
ना, या तो आप अपने जो सेल्स पर्सन है उसको स्प्रे करने दीजिए, एंड थोड़ा अगर सा आप खुद से स्प्रे करोगे उधर की कभी तरफ भी spray करके दिखा। कभी भी इतना पास से स्प्रे मत करना, Exactly. क्योंकि Exactly. क्या होता है वो फ्रेग्रेंस फैलेगी ही, मतलब वो इथेनॉल वगैरह से लाया This आएगा, is actually fragrance आएगी chemistry. ही। This is actually physics. ये मैंने बताया भी था एंड किसी यू हैव टू को. स्प्रे लाइक दिस, जैसे भी करके गए। स्ट्रेट लाइक दिस। हाँ, इससे ऐसे। क्या होगा, आपके सारे सारे notes- फ्रेग्रेंस नोट्स हैं वो प्रॉपर्ली आएंगे, और आपको इथेनॉल की वो इतनी नहीं आएगी, बिकॉज इथेनॉल इज जस्ट फॉर प्रोजेक्शन, एंड वो फ्रेग्रेंस में होना चाहिए, तो फ्रेग्रेंस विल गेट नहीं करेगी। एंड गिव टाइम टू सेटल डाउन, क्योंकि ऐसे ही बस स्मेल Now करके अपना try this. ओपिनियन मत And बनाओ। can I have another strip? अब तो शायद सेटल हो जाएगी तो आपको पता ही चलेगा, अदरवाइज हाँ। दोनों में बहुत डिफरेंस और इसका एकदम से कोई डिफरेंस दिखा आपको? Yeah, this is more of like alcoholic. हाँ, exactly. ऊपर चढ़ रही है. Exactly. हाँ। And then जैसे फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं है, Hmm. आपने नोट्स स्मेल किए नहीं, आप जस्ट स्मेल द इथेनॉल वाला इथेनॉल चीज। वाला चीज। Right. और 2 मिनट बाद वो, मतलब कुछ सेकंड बाद वो भी सेटल हो जाएगी, तो वो सेम ही आएगी उसके बाद। बट अगेन वो फर्स्ट वो चीज It हमेशा depends कि हाँ, ये first- फ्रेग्रेंस को ट्राई करना चाहिए, तभी सेल्स पर्सन होते हैं जो Should I आपको try it हेल्प on कर my सके। body, on my wrist? या यू शुड ट्राई इट, बिकॉज आपके स्किन टाइप पे कैसे रिएक्ट करेगा वो आपको डाल के पता चलेगा भी। Yeah. This is like a very common physics mistake that people do. अपने पास से आप कर रहे हो, so your body has pores on it. And the ideal way of spraying a perfume or anything is it should go inside the pores and stay there. अगर बहुत पास से करो वो ऊपर ही रह जाएगा उसका, वहीं से उड़ जाएगा, so that doesn't make sense. So हुआ ऐसा कोई moment कि कोई आया हो and they're trying to be very smart and then you could हाँ, it see happens through a them. lot of time. हाँ, it happens a lot of time. What are your because on this channel I talk a lot about everyday carry. So what are your current everyday carry perfumes? एक जिसके बिना तो मतलब घर से बाहर निकल ही नहीं सकते. I'm using Noir Enigma right now, जो मैं हर रोज लगाती हूँ। And nowadays Giovanni also, क्योंकि we were trying, तो वो वाला भी। And इनिशियली जो वेरी फर्स्ट आउट था उसमें से माय फेवरेट वाज अप्रिसिटी। आई वाज Apricity, कैरिंग इट एवरी डे, मतलब हमारे पास स्मॉल टेस्टर पैक था तो मेरी बैग में Bag तो में होता ही होता था। नाउ Who comes up with the naming thing? Because I really love the name. टुगेदर, Giovanni तो अभी मतलब एवरी नेम हाँ, हैज अ स्टोरी। every name has a तो story. अप्रिसिटी मींस जो आपका हाँ। फ्लोरल ब्लूम होता है फर्स्ट हम्म। स्प्रिंग का, विद द फ्लोरल फ्रेग्रेंस। देन मैजेस्टिक डस्क इज समथिंग व्हिच रिजेंबल्स नाइट टाइम, थोड़ा मैजेस्टिक। Giovanni जिवर्नी इज अ प्लेस इन पेरिस, जब मैं एमिली इन पेरिस देख रही थी तो वहाँ पे वो आया था, एंड आई लव द नेम, यार कितनी अच्छी जगह है, एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस विद, मतलब बहुत ही फ्लावर्स एंड हर चीज है, एंड उसका मतलब उसका मतलब भी है कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग वुमेन है, एंड वो डिपेंड करता है, वो करता है जो पूरा प्रोसेस में प्रोसेस में। हाँ। obviously we cannot aim for perfection, but हाँ। from the packaging, from accord selection to the name selection, we try कि हम अपना हाँ, बेस्ट खुद बेस्ट करे हैं। हम लोग से 4 बार, मतलब प्रोडक्ट अभी जैसे इसके बॉक्स जो नई फ्रेग्रेंस उसका हाँ। बॉक्स बन के आ गया है, डिजाइन से एंड तक हो चुका है। हाँ, मुझे पर हमें पसंद अच्छा नहीं नहीं आया, लगा, हम दोबारा से अब कर रहे आई हैं। नो 1 महीना डिले होगा, but we want it to be perfect when it goes perfect। to the market. I think बहुत सारी similarities है when it comes to perfume industry and the spirits and alcohol industry, because I'm very tied to that one. That's something that I'm really passionate about. तो मेरे को ऐसा लगता है कि perfume ना अभी भी बहुत बड़ा black box है. Like I'm fortunate enough to sit with you and understand the process कि कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा. But do you think there is a scope of perfume tourism going forward? जैसे wine tourism होता है. You go to vineyards. They first make you taste a couple of wines that vineyard has. Then they show you the grapes, they show you their processes, show you the barrels, how they age, the things like that. And बहुत सारी similarities perfume के अंदर भी है. So do you see there is a sense, a business sense in that कि आने वाला टाइम में हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लैक बॉक्स है यार ये. Exactly. To be honest, नोजे जो होते हैं आपके वाइन टेस्टिंग में भी होते हैं, एंड इट्स द सेम Same थिंग मतलब यहाँ पे perfume अप्लाई वाले में, होती है। एंड आजकल एवरीबडी वांट्स टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग। Right. कॉन्सर्ट जैसे चल रहा है बिकॉज इट्स एन एक्सपीरियंशियल थिंग, तो वेरी नाइस आइडिया। Yeah. ट्राई कुछ अगर हम Yeah. कर पाए तो I काफी would invest in that. I would invest in that. So it can be a very nice experience, and I feel बहुत लोग आएंगे, interested and हैं। Yeah, I would love to visit a factory and see कि bottling कैसे हो रही है, और even एक step before that कि अगर कोई let's say मस्क आया तो मस्क कैसे किस फॉर्म में आया, या फिर कैसे उसको हम कर रहे हैं Exactly. extract. उसके एंड आजकल ऐसे जो परफ्यूम लाइव क्लासेस चल रही हैं तो वो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं, क्योंकि everyone wants कि वो अपनी लिपस्टिक्स बजाते हैं, लिपस्टिक खुद बनाना, Right. परफ्यूम खुद बनाना, तो मे बी इससे और बहुत सारा क्रॉस इंस्पिरेशन भी है. I remember I was listening to Tom Ford and he was like, I absolutely love putting vodka in my perfumes because it smells so good, and champagne it's good for tasting but it smells shit. So he has a lot of lineup where they're using vodka instead of pure ethanol for their fragrances.
So yeah, definitely I think ये black box है, and going forward if someone can make a business sense out of it, crack it. I would love to go and try and see everything कि कैसे परफ्यूम बन रहा है. और पता है मजे की बात क्या होती है, जब भी तुम विनयार्ड जाते हो ना, you try a couple of wines, you absolutely cannot leave without buying a bottle from them. तो एक People will marketing buy, strategy. another strategy. एक way of having a distribution channel. Yeah, it's really fun. I'm learning a lot of things from you. What else? कुछ भी बताओ यार और परफ्यूम के बारे में, क्या मुझे जानना चाहिए, like as a connoisseur, what should I know apart from all the things that we have discussed about perfume? First of all, you should know what kind of fragrance you should wear at what time. हाँ, that's If very you are important. going morning में आप ऑफिस जा रहे हो, please don't apply oud because आस पास 10 लोग और परेशान होके जाएंगे. But if you're going for an Indian wedding, Then you can go apply for it. oud because you want कि तुम्हारी presence ऐसे grand हो, दूर तक smell तो You should know the आनी difference चाहिए, between the night fragrance fragrance and the day night fragrance. fragrance, day Let's talk about that. Let's talk about summer, winter. Let's talk about day, night. Let's talk about a formal meeting, and let's talk about a party. We'll break it down. Okay, so I'm a young Indian man. I'm in my middle 20s. I'm having a good job. I can afford a lot of perfumes. I'm building my collection. Suggest me what note should I go for when I'm going into a corporate setup, corporate event, corporate meetings in a daytime in summer. Aqua, citrus. I would not suggest aqua as such Okay. because it's a formal event, so you don't want to sound kiddish For because थोड़ा everyday aqua fragrance every people day आ use, गया. but क्योंकि summer है तो you'll sweat a lot obviously, तो you want something कि जो बहुत देर तक fresh feel कराए आपको and अपने अंदर से भी. So Blue. I would say कि Chanel blue. yeah, These Chanel, are all corporate yeah, citrus, citrus, woody, woody, musk, aqua, lime, all all these. these. मतलब I For would your suggest. everyday. You want to recommend anyone going for an oud fragrance? No, No, please no, no, no. big no. Okay, and if I'm having a formal corporate setup, but that's in winters. Then you can go for oud, woody, amber. I would suggest patchouli. Patchouli. I Patchouli resonate with that. But I have my biases. I love patchouli. I don't like patchouli, so I won't go for that. But again, in a winter setting, हाँ, corporate winter is patchouli. In morning time. Yeah, morning time. I would say they can go for Noir क्योंकि it has all the notes जो वो proper वाले उसमें सारे वो हैं. No, 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 no. I think you should do this categorization on a website that this perfume is good for this For season. this, Yeah, that's a nice we'll idea. do I this. would love to see that. हाँ. Do that. At Well, least for I'll me. if we're making a new New website, I'll we'll just do ask them that. to add it. Very Yeah. nice. हाँ. Okay, let's go for. I'm going for a date. ठीक है, I'm going for a date. It's an open setting. Let's say a garden sort of a setting. Nighttime, morning branch. Morning. Morning Evening, branch. मतलब beach का. दोपहर को. Yeah, actually. You can go for coffee vanilla something. But again, coffee vanilla is something which you can wear nighttime, evening thoda. Okay. If you're going for a brunch, I would suggest citrus and woody notes. Would that change अगर वो close setup हो instead of a garden setup? हाँ, close में थोड़ा aqua. Aqua. Because you're too close to the person, na, so you don't want to be very mild, very subtle, very. How about some zesty lemonish? Yeah, Yeah, that's I would- that is aqua में वही citrus में वही that is वही aqua side चीजें. Interesting. Let's say I'm going for a date night, ballroom night, and there would be a lot of people we will be meeting, but I will be focusing on my lady. And it's evening time. There would be drinks around. Will be a dance floor, and I need to stand out. I need to, get compliments from other people. Woody, woody. Amber is something which is very prominent. Then go for something little sweeter in that. You can also go for oud. Oud. Then अगर आपको Woody also. night time ही है ना, तो spicy also will work very nicely. Musk would work nicely. Rose and spices. Rose and spices would also हाँ, work. because वो आप ballroom Any में product from party. your lineup that would fit here? Rose and spices is possession. You can go for Possession. that and But, Noir Enigma Nighttime Noir. Nighttime Noir Definitely Enigma. Noir Enigma. and Oud Rare. Oud Rare also, if you are fond of oud, then yeah. Then you can go for that. What if I'm going for a extended family dinner? Oud Rare. Oud Oud Rare. is something which you can traditional use. Indian root kind of show करते Yeah. हैं, so you can go for that. Okay, I'm a introvert. I don't want to get the spotlight. I don't want to get the attention. But if someone I talk to come near to me, I need to smell decently good enough. Aqua, yeah. Anytime, because aqua is something which everybody likes. हाँ. वो you can never go wrong with aqua. Aqua is very common, तो मतलब आप डे में भी यूज करो, रात को करो, समर्स में करो, विंटर्स में करो. nostalgia. हाँ. तो वो कभी ना कभी किसी ने सूंघा होगा सूंघा और होगा, जो तो चीज़ वो they आपने will like सूंघी, it. they will like it. What's one sort of perfume that you could never go wrong with? कि एक होता है ना full stack, all day, every day. all That is season. aqua. That is aqua. Aqua and citrus का combination. हाँ, Because aqua is थोड़ा summer, citrus मिला दोगे तो winter, summer सब दोनों जगह चलता है. That's why I think वो जो white वाला है ना, like Costco वगैरह low hanging fruit है, कुछ समझ नहीं आता तो वही लगा लो, हाँ, हर जगह वो चल जाएगा. And what any product that you have in that range? Lagoon.
That is one of our best sellers. One of our best sellers, everyday fragrance. हाँ. Okay, I'm ordering this because मेरे को ज़्यादा सोचते कभी बहुत सोचने का मन नहीं करता. There is something also in those lines. Just मतलब Moon is थोड़ा सा ज़्यादा banana, fresh में I would say. थोड़ा Crystal Noir is थोड़ा कम fresh में. हाँ, मतलब थोड़ा Moon is very green. fresh, बहुत aqua vibes and बहुत ही chill vibe जो होती है kind of वैसा. All right. Going back to the business side of it, let's say there is a 22, 23 years old girl somewhere in India listening to this podcast and get inspired, wants to start their own perfume company for their own regional area or want to expand outside. How would you suggest कि कहाँ से start करें, क्या चीज़ों को सीखें, किन लोगों को reach out करें, what event they should go to. The idea is that they have some sort of decent money, they come from some privilege, have some connection. अब उनको अपना perfume brand launch करना है. So share everything that you have learned in your COVID period and after that, and help other people out there. So, if first of all, you should be passionate about this business हाँ. because this market is so saturated. इतना competition है, हाँ, you won't be able to competition stand has out. increased. Because जहाँ पे पैशन आ जाता है ना, वहाँ पे पैसे वाले लोग survive नहीं कर पाते ज़्यादा Right. टाइम तक. So first of all, be passionate about it. If you're passionate, Then only study go the into fragrance. Study the fragrance line, study every ingredient because you don't want to be sitting in front of your customers and if they say हाँ मस्त कैसा तो you मतलब तुम्हें डम नहीं लगना चाहिए. दम नहीं लगना चाहिए हाँ. Just study about entire fragrance line, study about the entire process of perfume making. There's like so much that is there. Distillation, हर एक ingredient different time पे evaporate करता है, different heat पे evaporate करता है. You Study know about your everything. product, everything basically. स्टडी कौन से नोट्स कौन से बेस क्या नोट्स है? होते हैं कौन से टॉप नोट्स होते हैं बिकॉज तुम बेस नोट को टॉप नोट में नहीं डाल सकते टॉप नोट को बेस नोट में नहीं डाल सकते फिर वो तो वो मिक्सिंग का So your प्रोसेस basic foundation should be very clear. उसके बिना you shouldn't be हाँ, getting should into the enter market. the And market. वो clear तभी होगा जब you have a passion in it. Otherwise you will not learn. You will burn out and you will leave it. You will ठीक है. Okay, once I am over that phase, I have studied it, I am confident कि मुझे आ गया. अब I need to go and I want to make some prototypes, make some examples. procure some essential oils Okay. and play with them. Where do you get the essential oils from? You can get it from anywhere. Anywhere, मतलब कोई इंटरनेट भी- पे भी मिल जाएंगे कुछ चांदनी देखना चौक पड़ता specific कि अच्छा हो कैसा हाँ हो. but हाँ, वो you should आपको smell it कि टाइम कैसा के है. साथ पता चलेगा. हाँ. So if you're smelling something, natural के बहुत ज़्यादा synthetic variants आते हैं. हर एक के synthetic variants आते हैं. So you'll have to be very particular about from where you are sourcing. चांदनी चौक में एक essential oils वाला है जौहरीमल गुलाब सिंह जौहरीमल करके जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था. तो वहाँ से essential oils procure करो and just learn about it. Just play with it. वही टाइम आपको 2 साल तो इसी में लग जाएगा कि आप समझने में कि समझने कैसे में। करना है क्या करना है बिकॉज इट्स अ वेरी डीप स्टडी टू बी ऑनेस्ट एंड देन फिर धीरे धीरे स्टार्ट ब्लेंडिंग लर्न फ्रॉम दैट एंड देन अगर आपको लगता है then go. I am very particular about research, मतलब testing and all that stuff. तो make sure that you get it tested, see क्या reaction तो नहीं हो रहा License, किसी से, proper licenses, get feedback. feedbacks, कैसे लग रहे हैं लोगों को because again it's a very subjective product तो आपको नहीं पता कि सामने लोग कैसे हाँ, चलेगा. आपको अच्छा लगे मे बी क्या पता उनको ना अच्छा लगे. हाँ so उसके बाद This is something अगर तुम्हें लॉन्च करना है तो अपने लिए बना दो ठीक है बट इफ यू वांट टू पुट इट इनटू मार्केट देन यू नीड टू गेट सम You should know the trends and क्या क्या चल रहा है मार्केट में क्या प्रेफरेंसेस हैं थोड़ा क्या surveys कॉमन है. कराओ. Surveys कराओ, क्योंकि अगर market आप बहुत ही research पर्टिकुलर करो. उसमें चले रहोगे तो मे बी. आप लोगों ने किया था ये सर्वेस वगैरह या फिर फोकस ग्रुप्स होते हैं. हाँ हमने सर्वेस करे थे. हमने सर्विस किए थे देन मैंने हर एक ब्रांड को स्टडी किया था कि कौन सी फ्रेग्रेंस चल रही है कौन सी फ्रेग्रेंस नहीं चल रही है क्यों चल रही है क्या इंग्रेडिएंट्स है. मतलब मैंने ऑलमोस्ट हर एक ब्रांड का ऑब्वियसली आई कुड मतलब मैं जाती भी थी स्टोर पे तो मैं सुनती रहती थी तो उस चीज़ से बहुत इंपॉर्टेंट पता चलता है एंड देन डेटा बहुत इजीली मिल जाता है कि आपको पता है कि क्या किस चीज़ कंपनी का बेस्ट सेलर है. ठीक है सो अभी मैंने स्टडी कर लिया पैशनेट हूँ मैंने सब फिगर आउट कर लिया. आई गॉट एसेंशियल ऑयल्स आई मिक्स्ड इट अप आई कम अप विद द फ्रेगनेंस आई हैव गेट गुड फीडबैक. लोग बोल रहे जल्दी निकाल इसको मार्केट में बिकेगा बहुत. उसके बाद क्या होना चाहिए टेस्टिंग करा ली. फ्यूमिस्ट फाइंड अ परफ्यूमिस्ट कहाँ मिलते हैं परफ्यूमिस्ट नॉर्मल लिंक्डइन पे रीच आउट कर लो. और इनका काम क्या होता है. Perfume अब बनाना. जो आपने परफ्यूम बनाया है यू डोंट नो उसमें क्या फिक्सेटिव जाना है कैसे जाना That है is not किस scalable. level पे. अगर it's Yeah. not scalable. आपको प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए उस चीज के लिए तो गो हायर अ परफ्यूमिस्ट दे विल चार्ज यू अ बॉम्ब इनिशियली. On a ballpark, how much they would charge for creating 1 scent? सबका बहुत डिफरेंट Give me some average. अगर कोई बहुत नया इंसान है नाइव है तो 40-50,000 एंड इट कैन गो इन लैक्स. Okay. अब when we talk about Dior, Chanel के परफ्यूमिस्ट हर एक परफ्यूम के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं. It's like a very big thing. Yeah, I mean they are magazine cover famous, हाँ, right? exactly. So that's a very वो तो- different concept. उसके बाद you after you have essential oil वो सब then mass production के लिए you can contact any third party manufacturer.
Okay, give me some example where will I find manufacturers and उनके जाके मुझे कैसे बात करनी है? What should be my way of approach to the mass manufacturer? गूगल पे मैं मिल तो जाते जितने हैं मैंने गूगल किया था, you get like a lot of people. What's the search query that you used? Third Perfume party. manufacturers. Mass manufacturer. हाँ, third party. In X65 area. हाँ. Yeah. Okay, and then you set a meeting with them. You went to meet them. You give them your formula. Yeah. Okay. And they produce it for you. And Yeah. वो भी sign होता होगा NDA वगैरह हाँ, का. हाँ, that's Saying, okay, ठीक है, अब ये बनकर आ गया. Now I have to bottle it. And bottling का design you can do independently. You can have a different bottle manufacturer. And जो mass manufacturer यही करेगा bottle. Like different. Okay. Then you will find someone who is a bottler. ये सही word है. नहीं नो बॉटलर बट या मतलब कुछ भी बोलो, factory factory से, हाँ. गूगल करके समझ जाता है. ठीक है. And if I'm saying that इसमें 100 ml perfume है, so my bottle at least needs to be 120, 125, right? So we need to, क्योंकि वो सब चीजें बहुत तो होती हैं गलत, and then cap is different, design is different. Okay, on a average, what should be my, let's say, margin in profit? So if I'm selling this perfume, let's say 1,000 रुपए का मेरा परफ्यूम बना है, कॉस्ट मेरी लगी है बनाने में सब कुछ, ठीक है. बहुत सारे लोग तो वो कैलकुलेट भी नहीं करते कि जो उन्होंने चीजें खराब करी, वेबसाइट्स बनाई, उसका रेवेन्यू, वो सब चीजें, टैक्सेस वगैरह. बट ऑन एन एवरेज व्हाट शुड बी माय प्रॉफिट मार्जिन व्हेन इट कम्स टू व्हेन आई एम सेलिंग, आई एम कोटिंग अ प्राइस फॉर द परफ्यूम? See, ये normal business norm है कि कोई भी business हो, at least you should have 15 to 20% profit margin, otherwise you will not sustain in the market. Initially, obviously, And after taxes you were saying this. हाँ, Yeah. basically क्या है कि initially नहीं हो पाता है इतना, because आप इतना ज़्यादा marketing में spend कर दो, Capturing the market, you capture your in the market, acquisition. उसमें penetration में time लगता है. After that, मतलब not even perfume line, any business Any in the business. world is like this. It should operate on 15 to 20% margin. Very interesting. So what are your plans for this year and coming years? We're So, launching we- 4-5 more stores. So basically, it's an experiential product. So first, we want to capture the offline market. We are planning to open like 4-5 more stores in Delhi NCR, and then we want to shift. We want to expand to Bangalore, Mumbai, more markets like this, because our target audience is corporate going people, because they need something for every day. So that is our target. That's why we have stores in Noida. We're doing operating more in Gurgaon. So that's how we plan to scale. We want to launch more SKUs, because हमारा जितना भी अभी orders है सारा repeat order है. Repeat order. So after a time, after 6 months, you'll get bored with the fragrance. Do you also kill product launch करके कि ये नहीं चल रहा, okay, let's not produce it Till now anymore? we haven't done that. Because But कुछ ना ऐसा कुछ चीज़ है ही नहीं कि वो इसको चल बताया रहा है. है. कितने products हैं अभी total? अभी हमारे 16 है पास but अभी हम 4 more launch 20 हो जाएंगे. Almost 20. Almost 20, yeah. no, That's we a good have food. 4 skincare na to 12. If you talk about just the fragrances, Just the fragrances. Just the we have fragrance, 12. हाँ. अभी 4 और launch होगा तो 60. So 16 is a good portfolio to have, and you are launching 4 more recently. Sometimes we think कि अच्छा हाँ इसको drop कर देते हैं, but then उसकी sales उसकी sales एकदम से increase हो It जाती है always जब हम- happens with us. ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस में when we talk about some girl sitting in India wants to start this business, how much capex would be need? मोटा मोटा कितने पैसों में हो जाना चाहिए start? You need a good investment basically, and it's a very हाँ, it's competitive a very market. competitive. 1 करोड़. Maybe Depends, depends. ज़्यादा आप कैसे भी करते हो, कैसे आप ब्रांडिंग कर रहे हो, आप कितना स्पेंड कर रहे हो. नहीं नहीं इसी तक का. लेट्स नॉट टॉक अबाउट ब्रांडिंग एंड ऑल. लेट्स टॉक अबाउट अपने आइडिया को. मेरे को बॉटल लेके जानी है, एंड आई नीड टू क्रिएट 100 बॉटल्स. तो उसमें मेरे को कितना केपेक्स लगेगा इन सब चीजों में? 2 करोड़ के आसपास. हाँ, because आपको मतलब marketing आपको का भी अच्छी करना investment है, चाहिए. आपको हर बहुत सारी चीज़ चीजें हैं. चाहिए It's देनी not just the bottle. MOQ is something that हाँ, has a exactly. very prominent role. Alright. और आपकी शेल्फ लाइफ अगर 3 साल है और आपका MOQ ज्यादा है, तो उसके लिए आपको मार्केटिंग भी उतना ज्यादा करना है ताकि उसको कि वो खत्म कर खत्म सको कर उस सको. टाइम में. हाँ. And MOQ बहुत ज्यादा होता है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स का. ऐसा नहीं होता कि वो आपके लिए 50 बना देंगे, 100 पीस बना देंगे. It's like 5,000, 10,000. हाँ, तो आपको बनवा के उसको स्टोर करने के लिए आपको एक जगह चाहिए. मतलब बहुत सारी Inventory चीजें, management इन्वेंट्री चाहिए. मैनेजमेंट चाहिए, हर चीज चाहिए. सो डेट स्टॉक भी होगा, because initially आपको पता नहीं है कैसे सेल आउट Right. करना है. कुछ You'll हाँ. have to think about all these things as well. तो स्टार्टिंग में obviously थोड़ा वो होता है. एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कहीं जाता हूँ, फॉर एग्जांपल आई वेंट टू अ गुड होटल 5 स्टार लॉबी, एंड वहाँ पे मुझे एक फ्रेग्रेंस बहुत अट्रैक्ट करी, एंड आई नीड टू गेट दैट परफ्यूम अपने लिए. सो मैं किसी परफ्यूम्स पे जाके इसको क्या बोलूँ कि यार मेरे लिए ऐसा बनाओ. उसको मैं क्या बोलूँ कि टॉप नोट्स ये थे, मिडिल नोट्स ये थे, ऐसे. मतलब हाउ शुड आई गो अबाउट इट? मुझे टेल कि उसमें कैसी फ्रेग्रेंस आ रही थी. अगर आपको थोड़ा सा लाइम आ रहा था तो आप बताओगे कि कुछ लेमन में उसमें चाहिए. अगर फ्रेश पता चल रहा था वैसे. हाँ. It's very difficult. Yeah. Because आप notes फिर भी guess कर सकते हो, हाँ. लेकिन जो accords होते हैं वो कोई इंसान ऐसे perfect unless I have the formula. It's very difficult. मतलब कि ऐसे sniff करा हुआ बताया हुआ है, but if you give a चलाने sample, पड़ेगा, वही sample करना पड़ेगा. Sample के साथ ही you can tell. हाँ. You can get something similar, but you cannot Cannot get get the the exact same. fragrance. राइट.
Why did you choose to go D2C and not, selling it to some businesses? I like challenges. And it's the most challenging thing to take in today's time. Exactly. And I want, मतलब if you, मतलब D2C is something जिसमें आप अपने कस्टमर से डायरेक्टली देख सकते Link हो कर उन्हें, पाते हैं. आप उनसे रिलेट कर पाते हो. It's like very interesting. So it's something that I like. So Right. B2B is easier. B2C is challenging, but it's like I mean, a both bigger have picture. their own. Maybe we can do it later. मतलब अभी तो we are हाँ, doing we it, can but do it maybe later. we We can will add do it later. later. Yeah. Both have their own pros and cons, I'm yeah. sure. I also noticed that you guys have skincare lineup. So talk briefly about that. Why did you choose to go? I know because she likes it. But what is the business point of view over here, having a skincare brand along with the perfume brand? So basically, when we talk about just the fragrances, it's very luxurious. So now marketing में बहुत ज़्यादा आपको पैसे डालना पड़ेगा तब जाके आप एक proper perfume brand ला सकते हो. Now it has a business side to it. When you have something supporting, you can market that and तुम्हें perfume का भी market मिल जाता है. Then उसकी shelf life कम है तो repeat order जल्दी आएगा. And then अगर किसी को पसंद आ गया तो repeat rate भी ज़्यादा है. So that was something जो हमने initially सोचा था, इसीलिए skincare lineup launch हुआ because वो business acumen And I think you guys are really spot on with that because my wife has given me feedback कि बहुत अच्छा skincare है, बहुत अच्छा products हैं, and she's definitely looking forward to get more. But एक बार briefly let's do a breakdown. So how much sales that you guys do in terms of percentage from each platform? Website पे इतना percent है, Amazon पे इतना है, skincare का इतना है, perfume का इतना. If you have some numbers in your head. Yeah, sure. So basically, when we talk about exhibitions, around 60% comes to us. 60% from exhibition. Yeah, only? 60% from exhibition. And then they do repeat orders on website. Yeah, Website, repeat yeah. order on the website. Wow. So now, because store का भी सिर्फ 2-3 months हुए ही हुए हैं, हैं, so हाँ. there's like we don't have the exact data अभी अगर देखा जाए तो, but around 30% वहाँ से and 10 to 20% through our website and website, Amazon, Amazon. Myntra. Because हमने ट्राई ही ऐसे किया है कि हम niche market capture करेंगे and then हम वहाँ पे store खोल देंगे. Are you happy with this numbers या कहीं पे you want to have We some- want the online Online sales sales to to increase increase. and the offline Offline जैसे obviously है. you want कि उससे भी increase हो, but But, online भी increase हो जाता. And what is like the brand ambition that you are looking for कि ये हमारा brand ambition है, we want to reach there, या फिर मतलब चल रहा है, we are evolving with No, Want to reach we there. have like Yeah. very big dreams. We want to make it big in the next Talk one. about the brand ambition and then we can close. See, we have a lot of brands in the luxury segment. We have a lot of brands in the mass segment, which have all, मतलब उनका नाम बन बन चुका चुका है. है. We have this white space, and we want to be the next Gucci in the affordable luxury segment. Yeah, the next Chanel in the affordable luxury segment. I want कि हाँ किसी अगर कोई middle class इंसान है या upper middle class इंसान है, if they are saying कि मैं Gucci लगा के आया हूँ, तो वो उसी pride और उसी confidence से बोले कि यार मैं Saroma लगा कर आया हूँ everyday office wear के लिए. So that is my ambition. That's what I You want take it for to a my next brand. level basically. Yeah. Interesting. Anything else that I should ask you guys before we close? I think we have covered everything. Any questions that you have for me? That's nothing. No, that's All right, then lovely talking, and I enjoyed a lot. I learned a lot. All the very best for what's coming. It was a great conversation. We'll definitely be in touch, and we'll help you guys in whatever way possible. Take it forward. Thank you for coming. Thank you to the so podcast. much. Thank you for calling I love us. it, and have a great year ahead. Thank you. All right. We'll definitely connect with you on the business plan. Yeah, please do. Look, it was so natural. हाँ, बहुत easy था. Easy था.